Videos on all of you. All videos will be out. Come on. Come to some number. Sum number 5. Fifth problem. Draw up a journal of fifth problem. What you would write in the journal of fifth sum? Sir, we did till 30. So we did the first 5 entries. Acha, हाँ, right. In the journal of Miss Nivedita. Right. First 5 entries. In the journal of Miss Nivedita, yes. First 5 has been done already. Let's continue from there. Then entry number. अच्छा, first 5 मतलब 13 तक हो चुका था आपका. Next one. 17. Purchased a computer with printer 40,000 rupees via debit card. Ninad, tell me the two accounts. What do you think? Purchase account and bank account. No. Think. बैंक अकाउंट सही है लेकिन परचेज अकाउंट में गड़बड़ है. कंप्यूटर एंड प्रिंटर. हाँ, कंप्यूटर अकाउंट you can use या फिर कंप्यूटर एंड प्रिंटर. You can write computer and printer. Computer and printer account can also be written. No problem. That. So computer and printer account, and what is the other account? Bank. Why not cash? Via debit card. Via debit card. Debit card है तो बैंक होना चाहिए. Is this clear? तो किसके लिए बैंक यूज करना है आपको? डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, NEFT हो, RTGS हो, IMPS हो, UPI हो, नेट बैंकिंग हो. ओके, ये सब आइटम्स के लिए यू हैव अ कॉमन अकाउंट दैट इज बैंक. मतलब पेमेंट्स बैंक से हो रहा है या पैसा बैंक में. So absolutely correct, Ninad. It is computer and bank. You can write computer and printer or bank. And what should be debited and what should be credited? Computer and printer account will be debited. Computer and printer account will be debited. And which account will be credited? Bank account shall be credited, right? So computer and printer account debit to bank. Can you tell me the reason, Ninad? Yes, computer and printer will become an asset, so it increases, so debit. Yes. And in bank it will be credited. Sorry, why? Why bank will be credited? Computer printer to asset बड़ा तो debit. Why? It's not personal account, so credit the giver. Okay, personal, but तुमने दोनों mix कर दिया. अब बैंक मॉडर्न में क्या है? बैंक मॉडर्न एसेट. बैंक इज योर एसेट. आपका अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है ना, बैंक. That's your asset. Just like asset decreases, that's why credit. Got it? Asset decreases, that's why credit. All of you got this? Next one, Siddharth. Yes, Purchase goods from Ravi of 50,000 on credit. What are the two? Sir, purchase account and one would be cash account.
read properly, read. Purchase goods from Ravi on credit. Sir, purchase account and Ravi account. हाँ, कैश किधर जा रहा है? कैश आ भी नहीं रहा है, जा भी नहीं रहा है. Sir, Credit purchase पे. account will be debited and Ravi would be credited. हाँ, purchase account debit and Ravi's account will be credited. Hope all of you are getting that. अच्छा, मेरे को reason बताओ why purchase and Ravi debit and credit. Sir, because the cash is going to Ravi and we are getting. अरे यार, goods. कैश जा ही नहीं रहा है. We are getting goods and we'll pay Ravi later. We'll pay Ravi later. So who is Ravi right now for us? Credit. Creditor. Creditor म्हणजे liability. Liability increases, so credit. Expense increases, so debit. ભૂલી ગયો? 2 દિવસ રજામાં બધું ભૂલી ગયો. ऑल गजनी. समझ में आ रहा है सबको? एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट और लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट. क्यों लायबिलिटी बढ़ी? उधार बढ़ा, आपने क्रेडिट पे खरीदा, ये दिया हुआ है, या बॉट इट ऑन क्रेडिट. परचेज और कैश कब आता? सिद्धार्थ, व्हेन वुड यू राइट परचेज एंड कैश? Sir, when we pay cash directly. हाँ, व्हेन वी पे कैश ताबड़तोड़. ओके, यहाँ पे आपने क्रेडिट पे खरीद, वो लायबिलिटी बढ़. नेक्स्ट वन, खुशी दोषी returned goods worth 4,000 to Ravi as they were defective. Something new, okay? Something new. ध्यान से देख के बताओ. One will be cash account and maybe one will be stock account for good. Purchase account. Yes, Raina. Will it be Ravi account and purchase account? एक राइट है, एक में वापस. Anyone? Sir, defective Return goods goods account. account and रिटर्न गुड्स के लिए एक नाम दिया था, किया भी हम क्लासिफिकेशन. याद करो, जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं और कोई और गुड्स रिटर्न करता है ना, उसके 2 स्पेसिफिक अकाउंट्स थे. देखो क्लासिफिकेशन, देखो सब क्लासिफिकेशन का टर्म नंबर 35 and 37. Purchase returns. दिखा? Ring some bell. Reduction of expense, reduction of income. So goods के लिए अभी तक कौन से अकाउंट्स हम लोग यूज कर रहे थे? परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और अनसोल्ड गुड्स के लिए स्टॉक. अब 2 और अकाउंट्स हैं वो गुड्स के लिए. 2 more accounts which are used for goods. What are they? Purchase return and sales return. Okay, purchase return and sales return. Listen very carefully. Whenever we return the goods to someone else, we use which account? Purchase returns. And someone else जब अपने को goods return करता है, हमारा debtor अपने को return करता है, तो we use sales returns. Okay? याद रहेगा? When we purchase, तब purchase account. जब हम return करते हैं, तब purchase return. जब हम बेचते हैं, तब sales account. जब debtor अपने को return करता है, तो sales return. ये अलग अलग क्यों दिखाते हैं? जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कि हमें पता चले कि कितने गुड्स डिफेक्टिव हमने रिटर्न किया, कितने हमको डिफेक्टिव. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से. बाकी वो परचेज तो नेगेटिव परचेज ही है. परचेज रिटर्न इज नेगेटिव परचेज, सेल्स रिटर्न इज नेगेटिव सेल्स. नाउ ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग? वी आर रिटर्निंग द गुड्स टू रवि एज दे आर डिफेक्टिव. ओके, अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज, रिटर्न आप जब भी करोगे ना, जब आप रिटर्न करोगे, जब या आपको कोई गुड्स रिटर्न करेगा, तब कभी भी नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस में आपको कभी पैसे नहीं मिलने वाले. यू विल नेवर गेट मनी. इट्स ऑलवेज whenever you return some defective goods, your supplier, your creditor, he won't give you money back. He will replace and give you goods again. Similarly, when you sell the goods and your debtor returns you the defective goods, you won't give him money only. You won't give him money. What you will do? You will give him some fresh goods. नया goods आप फ्यूचर में उसको दे दो वापस. Is this clear?
सो वो नया गुड्स का एंट्री सेम है सेल्स, नया गुड्स का एंट्री सेम है सेल्स, नया गुड्स का खरीदने का एंट्री इज सेम एज परचेज। बट बोलने का मतलब जब भी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न होता है ना, तब 99% इट इज गोइंग टू बी ऑन क्रेडिट बेस्ड। क्रेडिट मतलब पैसा नहीं आने वाला है, यू विल रिटर्न द गुड्स एंड फ्यूचर में आपको बाद में गुड्स रिप्लेस करके मिलेंगे, पैसा नहीं मिलेगा। आपको कभी गुड्स आया, आप फ्यूचर में नया गुड्स दोगे डेटर को सेल के फॉर्म में, बट आपको पैसे नहीं मिलने, आप पैसे नहीं देने वाले। तो परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न में वन अकाउंट इज परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न एंड द अदर अकाउंट इज नॉट कैश अकाउंट, इट इज नेवर गोइंग टू बी कैश, इट इज गोइंग टू बी पार्टीज अकाउंट, either creditor or debt, parties either creditor or debtors. Is this clear? So बोलने का मतलब आपने यहाँ पे 50,000 का गुड्स परचेज किया है फ्रॉम रवि, उसमें से 4,000 का डिफेक्टिव नहीं, तो आपने उसको रिटर्न कर दिया। तो ये जो रिटर्न का ट्रांजैक्शन है, क्या आपको पैसा मिलेगा ताबड़तोड़? नहीं, पैसा नहीं मिलेगा। So what are the two accounts over here? One account is purchase returns account, and what is the other account? Ravi account. Ravi account. Not cash, huh? Not cash. Rare situation it is possible that you might get cash. तभी दो account would be purchase return and cash. If you are getting cash immediate, but normal course of practice of business में कोई आपको cash देता नहीं है, ना ही आप किसी को cash देते। Okay? आप replace करके goods दे दे। आपने देखा होगा कभी नो मनी बैक पॉलिसी, आपका ये नो रिफंड पॉलिसी, ऐसा सब शॉप्स का रहता है। पैसा नहीं मिलेगा, आपको रिप्लेस करके गुड्स मिलेगा। सो कीप दैट इन माइंड, दैट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस। बहुत रेयर सिचुएशन में कैश भी आ सकता है, तो फिर कैश और परचेज रिटर्न हो जाए। तो अब इमेजिन करो व्हाट इज परचेज रिटर्न एंड व्हाट इज रवि, हाउ विल यू आइडेंटिफाई, क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट होना चाहिए? Ravi will become our asset, so asset increases. Who was No, Ravi? liability We was a decreases. creditor. Yeah, Liability liability decreases. decreases. Liability sorry. decrease. Why was Ravi a liability? Because we purchased goods from him. So he was Yeah, a creditor. Creditor. हाँ, तो अभी आप उसको 4,000 के गुड्स वापस कर रहे हो ना, तो क्या आप वापस 50,000 ही पेंडिंग रखोगे कि अभी पेंडिंग अमाउंट 46 हो जाएगा? 46. 46 हो जाएगा। 50 का गुड्स खरीदा था, तो दैट टाइम वाज योर लायबिलिटी, राइट? अभी 4 का गुड्स वापस कर दिया ना, रिटर्न कर दिया, तो लायबिलिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? लायबिलिटी Decreases. by 4,000 rupees. Are you getting that? So liability decreases, so debit, Ravi को डेबिट करना है। And what is purchase returns? Income. Like an income. Purchase return is like an income. Exactly income नहीं है, reduction of expense है, but transaction के लिए सोच सकते हो, it is an income. तो purchase return क्या कर रहा है? आपका खर्चा बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? Decreases. Decreases ना, आपका expense कम हो रहा है। क्यों? आपने गुड्स खरीदा था 50,000 का, दैट टाइम परचेज बढ़ा था 50,000, अभी परचेज घट रहा है, तो परचेज घटने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं परचेज रिटर्न। वी डोंट राइट ओनली परचेज, वी राइट परचेज रिटर्न, ओके, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज परचेज रिटर्न? नेगेटिव परचेज, नेगेटिव परचेज, परचेज ही कम हो, परचेज कम हो रहा है मतलब परचेज रिटर्न बढ़ रहा है। परचेज रिटर्न इज लाइक एन रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस। सो रूल क्या अप्लाई होगा यहाँ पे? रवि is a liability, Ravi is a liability, और liability कम हो रहा है तो डेबिट, liability कम हो रहा है तो डेबिट। टू purchase returns is like an income, opposite of purchase, like an income। तो इनकम बढ़ा तो क्रेडिट, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट। Ravi to purchase, Ravi to purchase, being goods रिटर्न टू रवि। इसको ट्रेडिशनल में कैसे फिट करोगे आप? ट्रेडिशनल में रवि कौन है? पर्सनल है। आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो, तो रवि कौन हुआ? Receiver. तो डेबिट द रिसीवर करोगे, है ना?
और परचेज रिटर्न इज लाइक एन इनकम, Nominal. क्रेडिट ऑल इनकम, Nominal. नॉमिनल इनकम, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स है. इज दिस क्लियर? यही अगर सेल्स रिटर्न होता तो क्या होता एंट्री? आपको किसी ने गुड्स रिटर्न किया तो क्या एंट्री करोगे? Sales. Asset Sales. decrease. हाँ, तो एसेट डिक्रीज तो डेटर क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स रिटर्न इज लाइक एन एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड सेल्स रिटर्न टू डेटर, सेल्स रिटर्न टू डेटर. गॉट इट? तो ये स्टैंडर्ड एंट्री ही है. परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी? पार्टी टू परचेज रिटर्न. और सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न टू पार्टी. समझ आए? सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न का मतलब समझ आया? ये कभी कैश पे होगा कि क्रेडिट पर ही होगा? हमेशा Credit. Credit पे बहुत रेयर सिचुएशन में आप कैश दे सकते रिप्लेस. तो क्वेश्चन में दिया हो कि आपने गुड्स रिटर्न किया और कैश आया तो फिर कैश टू परचेज, और रिटर्न हुआ और आपने कैश दिया तो सेल्स रिटर्न टू कैश. लेकिन अगर 99% में तो कैश नहीं होगा, कुछ नहीं दिया है, तो फिर पार्टी का नाम ही. इधर आपका लायबिलिटी घटेगा या आपका एसेट. सी नेक्स्ट वन, पेड फॉर ऑफिस रेंट. टेल मी कार्तिक, ऑफिस रेंट क्या होगा? Sir, office rent account and cash account. Okay, tell me what should be debited and what should be credited? Office rent should be debited because it is an expense and cash is an asset which decreases. So debit. एकदम पर. ऑफिस रेंट एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, तो कैश अकाउंट एसेट घटा तो क्रेडिट. दैट्स 2000 being ऑफिस रेंट पेड. एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. देन 26, settled Ravi's account by NEFT. Settled Ravi's account by NEFT. Now this is also something new. ये बिजनेस में बहुत बार होता है. आप एक टाइम पे आके कितनी बार ऑन अकाउंट दोगे? कभी तो परमानेंटली पैसा देना भी पड़ेगा ना. तो परमानेंटली यहाँ पे सेटल कर, फिर वापस खरीदना होगा तब खरीदो. तो सेटल्ड का मतलब पूरा का पूरा पैसा देना है आप. ठीक है, यू आर पेइंग द फुल अमाउंट टू रवि. नाउ अमाउंट तो दिया नहीं है, तो कैन यू यूज योर ब्रेन एंड टेल मी हाउ मच मनी आर वी सपोज टू पे टू रवि एज ऑफ नाउ? 46,000. 46. All of you agree? 50,000 ना? 4,000 worth. No, 4,000 भी return. worth of. है कि नहीं? आपने कोई दुकानदार से समझो 3 मोबाइल फोन खरीदा, 3 मोबाइल, 10,000, 30,000. उसमें से एक मोबाइल फोन डिफेक्टिव निकला, आपने रिटर्न कर दिया, तो आप कितना पैसा दोगे दुकानदार को? अभी 20,000, राइट? सेम कंसेप्ट, सिंपल सा लॉजिक है. खरीदा था 50 का, उसमें से 4,000 का रिटर्न हो गया, राइट? तो हाउ मच आर वी सपोज टू पे हिम? 46. ऑल ऑफ यू एग्री ऑन दैट? अब ये जो है ये बहुत सिंपल सा ट्रांजैक्शन कि आपने 50 का खरीदा, 4 का रिटर्न किया, तो 46 देना है. सिंपल, राइट? बट कभी इमेजिन करो कोई बिजनेस है जिसमें 10-12 ट्रांजैक्शन हुए हैं रवि के साथ. खरीदा, रिटर्न किया, खरीदा, रिटर्न किया, खरीदा, रिटर्न किया, खरीदा, रिटर्न किया, और अब आपको बोला है कि चलो बताओ रवि को कितना पैसा देना. हाउ टू फाइंड आउट? 10-12 ट्रांजैक्शन है. ओके, तो इसके लिए एक शॉर्टकट आपको मैं बता देता. ओके, शॉर्टकट भी सुन लो. व्हाट इज द शॉर्टकट? आस्क योरसेल्फ, हु इज रवि? इज ही अ क्रेडिटर और अ डेटर? Creditor. Ravi is a creditor. Are you all with me? Yes. Yes, Shrushti. Goods worth rupees 4,000 should be replaced. But has he replaced the goods yet? क्या उसने अपने को रिप्लेस करके गुड्स दिया है? नहीं दिया है. अभी तक तो हमने डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न किया है खाली. हाँ, अगर वो रिप्लेस करके गुड्स दे देता तो वापस हम लोग एंट्री मारते हैं परचेज टू रवि. गुड्स खरीदा, एक्सपेंस बढ़ा, लायबिलिटी, तो फिर हम उसको 50,000 दे दे. अगर उसने रिप्लेस करके गुड्स दिया होता तो. डिड ही गिव अस रिप्लेस्ड गुड्स येट? तो दिया है एंट्रीज में कहीं पे? दिया नहीं.
अभी तक रिप्लेस करके गुड्स आया नहीं, बराबर है। आया होता तो वी वुड हैव गिवन हिम 50,000, करेक्ट, एब्सोल्युटली। बट अभी अभी कितना देना है, अभी तो कुछ रिप्लेस करके कुछ नहीं आया, तो 46,000 देना है। अभी इसका शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे ढूंढना है ये 46। अभी तो बहुत सिंपल है, जब ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाएंगे तब ये काम है। रवि इज अ क्रेडिटर, राइट। अब क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, कैसे पता चलेगा कितना देने का, उसका शॉर्ट, इट इज सिंपल, डू क्रेडिट माइनस डेबिट। क्या करने का, क्रेडिट माइनस डेबिट। किसका क्रेडिट माइनस किसका डेबिट, रवि का। जिधर जिधर रवि क्रेडिट हुआ है वो ऐड करो, और जिधर जिधर डेबिट हुआ है वो माइनस। ऊपर देखो ट्रांजैक्शन, ये रवि यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, कितने से क्रेडिट हुआ है, 50,000. और कितने से डेबिट हुआ है। 4,000. तो क्या बोला मैंने यहाँ पे आपको, क्रेडिट माइनस डेबिट, 50,000 माइनस 4,000, which comes to how much, 46। कॉमन सेंस, सिंपल। आप इमेजिन करो, ऊपर 10 एंट्री में वो क्रेडिट हुआ है और 4 एंट्री में वो डेबिट हुआ है, तो क्रेडिट करने का मतलब क्या है, इज अ लायबिलिटी, इज अ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्रेडिट हुआ मतलब बड़ा, तो जितना क्रेडिट है उतना उधार बड़ा है, यस और नो। जितना क्रेडिट है उतना उधार बड़ा है, और जितना डेबिट है उतना उधार कम हुआ है, बराबर है। तो क्रेडिट माइनस डेबिट का लॉजिक क्या है, क्रेडिट मतलब वो लायबिलिटी है, जितना उसको क्रेडिट किया उतना वो बढ़ा, उधार बढ़ा, और जितना उसको डेबिट किया उतना उधार कम हुआ। तो क्रेडिट माइनस डेबिट किया तो पता चल जाएगा कितना पैसा देना बाकी है। तो इन एनी बिजनेस, इन एनी ट्रेडिंग बिजनेस, आपके घर पे कोई ट्रेडिंग बिजनेस होगा, कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस, उस बिजनेस में अगर आपको ये जानना है कि आपके क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, हाउ मच मनी आर यू सपोज टू पे योर क्रेडिट, so there is a simple shortcut, simple formula for that. What is the formula, do credit minus debit, credit minus debit, आपको मिल जाएगा इतना पैसा देना बाकी। बात समझ आई। और यही आप अभी मुझे सोच के बता, अगर आपको ये ढूंढना है कि कोई डेटर से आपको कितना पैसा लेना है, कोई कस्टमर या डेटर से आपको कितना पैसा लेना है, हाउ मच आर यू सपोज टू रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, then how will you find out that, Debit minus credit. डेबिट माइनस क्रेडिट। क्योंकि उसको डेबिट किया मतलब एसेट बढ़ा, डेटर बढ़ा, डेबिट 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 डेबिट, उतना डेटर बढ़ गया, और क्रेडिट किया है मतलब उतने से कम हुआ है, सेल्स रिटर्न हो गया, कुछ डिफेक्टिव गुड्स या कुछ पैसा दे दिया। तो डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा डेटर से कितना पैसा लेना बाकी। बात समझ आई। ये आगे भी बहुत बार आएगा, बहुत काम की चीज है, ओके, प्रैक्टिकली भी बहुत काम की चीज है, पता चलेगी आगे। सो रवि इज अ क्रेडिटर, सो हाउ विल यू फाइंड आउट द अमाउंट, क्रेडिट माइनस डेबिट 46,000। अब आप उसको पैसा दे रहे हो कि उससे पैसा ले रहे हो, ये बात। We are giving him. You are paying him, you are giving him. So what should be debited and what should be credited? What should be debited and what should be credited? Read it. Ravi account. The will account to become- bank account. Ravi account debit to bank account. Why bank? Why not cash? Because we are NEFT. paying by NEFT. NEFT. NEFT ऑनलाइन पेमेंट का जरिया है, बराबर है। वो बताया था, गूगल देखा कि नहीं, यूट्यूब देखा कि नहीं, NEFT, RTGS, IMPS, देखो देखो, थोड़ा क्यूरियोसिटी रखो, ओके। those who have not seen, please go through it again, okay। NEFT, RTGS, UPI, IMPS, read it, एक बार देखो, सर्च करो ऑनलाइन क्या होता है, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर एक बार इसको। तो रवि अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, NEFT हो, RTGS हो, मतलब बैंक से जा रहे हैं। सो रवि टू बैंक, कितना पैसा दोगे आप, 50,000, 4,000 की 46,000? 46. 46,000 दे दोगे। अब आपने पूरा पेमेंट कर दी कि कुछ बाकी है रवि को?
पूरा पेमेंट पूरा पेमेंट हो चुका है. Being Ravi's account settled. Being Ravi's account settled by NEFT. Being Ravi's account settled by NEFT. So we need to show the calculation. No, you can show it in rough. This is just for your understanding. Here you can show the end. Yeah, calculations, all calculations in rough. No need to show any calculations. Okay? अभी करना है तो कर सकते हो, एग्जाम में मत, वो रफ में. ओके, लेकिन आपको समझ आया कैसे आया ये अमाउंट? अच्छा, ये ट्रांजैक्शन के बाद रवि को कितना पैसा देना बाकी है? 0. 0. आप वेरीफाई भी कर सकते हो. कैसे करोगे वापस? कितना पैसा देना बाकी है कैसे ढूंढते हैं? क्रेडिट माइनस Credit minus. अब क्या आएगा रवि का? क्रेडिट माइनस डेबिट 0 है ना. ये देखो, क्रेडिट 50,000, डेबिट 4,000 और डेबिट 46,000. It becomes 0 automatically. Are you understanding? तो क्रेडिट माइनस डेबिट 0 होने का मतलब वो बंदा सेटल्ड है. सेटल्ड मतलब हमने पूरा पेमेंट कर दिया है, एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है. तो बिजनेसमैन जो होते हैं उनके पास कभी कोई डेटर आ जाता है, कोई क्रेडिटर आ जाता है, तो वो लोग ऐसे ही चेक करते, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो पता चल जाएगा कि उधारी कितना देना बाकी है, और डेबिट माइनस क्रेडिट पता चल जाएगा कितना लेना. बढ़े आगे. नेक्स्ट वन 27. यहाँ पे कोई डाउट? ऑल सॉर्टेड. 27. Received commission through RTGS. Harshil Banushal, can you tell me the two accounts? Yes, sir. Bank account and commission account. एकदम करेक्ट. क्या डेबिट करोगे, क्या क्रेडिट करोगे? Bank account is debited and commission account is credited. एकदम परफेक्ट. क्यों बैंक अकाउंट डेबिट और क्यों कमीशन क्रेडिट? रीजन Bank बताइए. account is an asset and asset increases so debit, and commission account is an income. So income increases so credit. एकदम परफेक्ट बोला. समझा सबको? बैंक एज एन एसेट इंक्रीजेस, कमीशन एज एन इनकम इंक्रीजेस. Why bank and why not cash? RTGS. RTGS. Okay. Commission received through RTGS. So RTGS, NEFT. इधर अमाउंट में मत जाना, वो 2 लाख का लिमिट होता है RTGS में, बट इधर यू डोंट सी द लिमिट एंड ऑल. आपको ट्रांजैक्शन में, बोर्ड्स में और 11th में भी सब जगह NEFT RTGS दिया है, तो खाली बैंक यूज कर दे, अमाउंट को मत दे. प्रैक्टिकली अमाउंट काम में आएगा, यहाँ पे अमाउंट को इग्नोर. जो भी अमाउंट हो, RTGS है तो बैंक, NEFT है तो बैंक. भौमिक, paid for cleaning and sweeping charges. What? Sir, cleaning and sweeping account. सन्ड्री. छोटा छोटा एक्सपेंस के लिए कौन सा ऐड यूज करना है? Sundry account. हाँ, सन्ड्री एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस. तो वन इज सन्ड्री एक्सपेंस. व्हाट इज द अदर अकाउंट? Cash account. कैश. तो क्या करोगे आप एंट्री में? Sir, credit the giver with cash. What is sundry expense? Real, personal or nominal? Nominal. Nominal. And what is cash? Real. क्या रूल अप्लाई करोगे सन्ड्री एक्सपेंस को? अरे नॉमिनल का रूल बोलो भूमिक. अरे आवाज ही. नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. Expense and loss. और कैश का रूल क्या अप्लाई करोगे? कैश आ रहा है कि जा रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज अप. ओके, रूल्स परफेक्ट होने चाहिए. सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज 500. मॉडर्न भी अप्लाई कर सकते हो. एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट. ओके, बीइंग सन्ड्री expense paid, being sundry expense paid. Okay, next one. Mahi, withdrew from bank for office use. Withdrew from bank for office use.
think about. Mahi, Yes. Bolo. Bank Bank account, yes, and anyone? Cash Cash account. cash account. Why not office use account? ऑफिस यूज जैसा कोई अकाउंट होता है? ऑफिस एक्सपेंस होता है, ऑफिस एक्सपेंस अलग। ऑफिस यूज मतलब आपने बैंक में से पैसा निकाला, सिंपली। जैसे आप बैंक में पैसा डालते हो ना, ऑफिस वाले गांधी बापू को ऑफिस से बैंक में डालते हो, अभी बैंक से गांधी बापू को लेके आए वापस ऑफिस। कैश इज कमिंग इनटू द ऑफिस, क्लियर? So bank account and cash account, got it? So tell me now, can you do that, Mahi? What is bank? What is cash? What would you debit? What would you credit? Cash is asset. It increases. Cash. Yes, Yeah. Cash increases, so asset increases, it's debited. yes, And bank balance decreases, it's also yeah, debited, so it yeah. is debited. Example, example. So cash account debit to bank account. Okay. Cash account debit to bank account. Cash बढ़ा, bank घटा. Cash बढ़ा तो debit, bank घटा तो credit. Being cash withdrawn from bank for office use. For office use. ठीक है? Okay. Then 31st one. Rivan paid for salaries. Come on. Yeah, sir. Cash account and salary account. Very good. What should you debit and what should you credit? Salary account will be debited and cash account will be credited. Very good. Tell me the reason. Salary is an expense. Yes. So expense increases, so credited, and cash. Expense increases, so? Sorry, expense increases, so debited. Ah. And cash is an asset, so asset decreases, so credited. Being salaries paid. All of you got this? Salaries are your expense. Expense बढ़ा तो debit, asset घटा तो credit. If you have time at the end, then you can do the totals. Okay? Totals are not compulsory. Try the total at home. घर पे कर लेना. ले लो third sum. All of you thirds. Sorry. If it had been for personal use, then it would have been drawings, right? What for personal use? Being cash withdrawn from bank for personal use. Yes, then drawings and bank. Then drawings and bank. Office use है तो cash and bank. Personal use है तो drawings and bank. Drawings would be debited and bank would be credited. Absolutely. Draw for third sum, all of you. Doing sum number 3 now. Draw for sum number 3. तो ये जो आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, दिस इज अ प्रॉपर प्रॉब्लम ऑफ वैरायटी ऑफ एंट्री, मतलब बेसिक वैरायटी, और आगे डिफिकल्ट वाले आएंगे। ये बेसिक वैरायटी का पूरा मिक्स्ड प्रॉब्लम है, ऑल वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन। तो सोमैया के पेपर में जनरली ये टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है यूनिट टेस्ट। एनएम का लेवल थोड़ा हाई है, उदार का लेवल हाई है, एचआर का इजी है, एचआर का भी ऐसा लेवल का आ जाता है कभी कभी। NM papers are difficult, Mithi Bai papers are difficult, Uda papers are difficult. We'll be solving your NM papers, Udar papers before exams and all. Unit test जब भी आएगा उससे पहले we'll be solving them in class. तब तक हमारा जो ये नोट शीट का सब प्रॉब्लम है वो लेवल आ जाए। चलो
Third problem. All of you have drawn. Let's begin. First one. Teach Shah. Yes. Tell me. First one. Hiram started. किसके बुक में लिख रहे हैं हम लोग? Shri Hiram. In the journal of Shri Hiram. बताओ. First is. आप डेट्स कैसे भी लिख सकते हो. अप्रैल 2011 करके 1 2 3 4 लिख सकते हो, या फिर 1 4 11 2 4 11 वैसे भी. योर बोलो मुझे. फर्स्ट वन. हिराम स्टार्टेड बिजनेस. व्हाट आर द टू अकाउंट्स? Yes, cash account and capital account. कैश अकाउंट एंड कैपिटल. एकदम करेक्ट है. कैश अकाउंट एंड कैपिटल. व्हाट शुड यू डेबिट एंड व्हाट शुड यू क्रेडिट? Cash account should be debited as it is an asset and it increases, so debit. And Yes. capital is capital and it increases, so credit. एकदम करेक्ट. Cash is an asset, increases so debit. Capital is capital, increases so credit. Amount is 71,000. 71,000 being cash introduced in business. Being cash introduced in business. Absolutely correct. Lokik, tell me the second one. Purchase goods from Mahesh on credit. What are the two accounts? Lokik. Yeah, purchased goods from Mahesh, 20,000 on credit. Yes. Because it's on credit, it will be Mahesh account and purchase account as we are buying. Absolutely right. Absolutely right. Mahesh is a creditor, Yes. so he's a liability for us. Yes. So if there is increase in liability, it will be a credit. Yes. So that will come second. And Yes. the purchasing goods, that is a expense. That is an Yes. expense. So it will be increase in expense. Therefore, that's debit. That's debit. Ekdam perfect. So purchase account debit to Mahesh account. Purchase account debit to Mahesh account. 20,000 rupees. 20,000 rupees. Being goods purchased from Mahesh on credit. So which is sum number? Sum number 3. Sum number 3. Third sum here. Being goods purchased from Mahesh on credit. Being goods purchased from Mahesh on credit. Ekdam correct hai. Third sum, first and second one. Is this clear? So can we write being goods purchased from Mahesh? हाँ. वो भी चलेगा. Being goods purchased from Mahesh. नाम आ गया तो it is assumed that is on credit. Siddhant. Goods returned to Mahesh of 2,000 as they were defective. अभी किया. क्या होंगे दो? Purchase return account and Mahesh account. Absolutely correct. Why not cash? All of you got this? Whenever we return the goods, will we get cash in return? ताबड़तोड़? Never. Okay? अभी खाली रिटर्न कर दो और महेश को कम कर. या बोलो इधर. क्या करोगे डेबिट, क्या करोगे क्रेडिट? Yes, so so Mahesh will be our creditor. So Yes. he's a liability, so it increases to credited. Increase. No, sir, it is decrease. Decrease. आप So कुछ debited. रिटर्न, हाँ रिटर्न कर रहे हो ना, तो लाइबिलिटी घट जाएगा. हाँ, so it decreases, and the Mahesh account, it will, that is done. Huh? So then it will be the purchase return, which is expense. So expense increases. So Purchase return is not expense. Purchase is expense. Purchase return is like it will be like liability. income. Okay. Opposite of purchase return को income के जैसा ले लो. Treat purchase return like income. Purchase is expense. Purchase return is income. Sales is income. Sales return is expense. Opposite. Return जा रहा है ना, खरीद रहे हो तो purchase, वापस जा रहा है तो purchase return like income. Income. So what rule will apply to purchase return? So income, it decreases. So Decrease. So the increasing. Increasing. So it will become credited. Credit. So Mahesh कौन था? Mahesh was a liability. Liability बढ़ा के घटा. घटा. तो debit. And purchase return is like income. Income बढ़ी के घटी. Return कर रहे हो तो बढ़ा. तो income बढ़ा तो credit.
So Mahesh to purchase return. It is reduction of expense, but you can treat it as income. Purchase return like an income. So Mahesh to purchase returns कितना होता है ये 2000. Mahesh to purchase returns 2000. Being goods returned to Mahesh. Being goods returned to Mahesh. अब मुझे जरा सोच के बताओ, we are supposed to pay how much to Mahesh as of now? 18,000. 18,000. All of you understood? 18,000. Why 18? Did he give us some fresh goods in exchange? Replace करके दिया? No, not. हाँ, अगर fresh goods replace करके दे दिया होता, तो हम लोग अभी कितना पैसा देने वाले होते उसको? 20,000. अच्छा, अगर fresh goods replace करके दिया होता तो entry क्या होती है? Purchase. Purchase account. Purchase to Mahesh. Mahesh. वापस purchase to Mahesh. Expense बढ़ा, liability बढ़ा. फ्रेश गुड्स का कोई सेपरेट एंट्री नहीं है, नॉर्मल परचेज का ही एंट्री. परचेज टू महेश. ओके, अगर फ्रेश गुड्स रिप्लेस करके आया होता तो, आया नहीं है. क्लियर विद दैट ऑल ऑफ यू? महेश लाइबिलिटी घटा, परचेज रिटर्न, इनकम बढ़ा. इनकम बढ़ा तो क्रेडिट. मीत डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया. टेल मी द टू अकाउंट्स. Yeah, bank account and cash. Very good. Tell me what should you debit Bank and what? account would be debited and cash account would be credited. एकदम. As both are asset, one increase that much. एकदम परफेक्ट. ओके, ऐसा एकदम राजधानी का स्पीड में बोल के. बैंक अकाउंट इज एन एसेट, इंक्रीजेस सो डेबिट. कैश अकाउंट इज एन एसेट, डिक्रीजेस सो क्रेडिट. एकदम परफेक्ट. दैट क्लियर शुड बी द कंसेप्ट इन योर माइंड. बैंक टू कैश. एसेट बढ़ा, एसेट घटा. एक एसेट बढ़ा, एक एसेट घटा. एकदम करेक्ट बोला. Bank increases, cash decreases. Being cash deposited with bank. Being cash deposited with bank. बराबर है. Next one. Sold goods to Dhanraj on credit. Ashmi, tell me the two accounts. Sir, purchase account. अरे. No, sorry, sales account Hmm. and cash account. अरे शांति वाचो. कैश आ रहा है, जा रहा है, कुछ हो रहा है. कैश Cash nahi. So, have you sold it for cash or on credit? Credit. તો પછી cash આવ્યું પણ નહીં, ગયું પણ નહીં, તો cash કેવી રીતના આવશે? Think. Sales account And Dhanraj account. क्रेडिट पर होता तो पार्टी का नाम, कैश पे होता तो कैश. सेल्स एंड धनराज. सेल्स एंड धनराज आएगा. अब डिसाइड करो दिमाग में. चलो. Sales will be debit. No, sales will be credit because it is going. गोइंग नहीं. Sales decrease, so व्हाट इज सेल्स? पहले वो डिसाइड करवा. sales is asset. अरे Sales is income. Sales is income, sir. so many times. Biggest income of a business is sales. Sales, अच्छा ध्यान. Sales is income. sales is income. And Dhanraj is Dhanraj is तो गुड्स बेचा. तो कौन हुआ वो हमारा? credit. Creditor. Debtor. Debtor. Dhanraj is debtor. Yes. गुड्स बेचा ना, पैसा लेना बाकी. Dhanraj is debtor. And sales is Income. अब अप्लाई करो रूल. Income. Income is increasing, so credit. And धनराज asset increasing, so debit. हाँ, धनराज से पैसा लेने का बढ़ गया. ओके, सो डेबिट. આવ્યું? हाँ. ખબર નથી કર્યું. એબ્સેન્ટ હતી એનું. શીખાય છે. ખબર કરી લેવાનું ફટાફટ આખું ડિટેલમાં, તો આમ પ્રોબ્લેમ થશે આગળ. વોટ અશ્મી? Sorry. Keep your video on. Video on. Meet Ashmi both. Fire your videos on. Keep it on. Sir, I texted you. Texted me. Yes. Okay. Where are you shifting? Sir, Tilak Road, my house is getting renovated, so
So coming back to the entry, Dhanraj account is debited. Dhanraj account is debited. Dhanraj is an asset. Debtor increases, so debit to sales account. Income increases, so credit. Okay. Dhanraj account debit to sales account 25,000. 25,000 being goods sold to Dhanraj on credit. इसी में ट्रेडिशनल सिस्टम डालना होगा तो क्या करोगे? ट्रेडिशनल में क्या है धनराज? पर्सनल है और सेल्स क्या है? नॉमिनल. बराबर है. धनराज का क्या होगा? डेबिट द रिसीवर एंड सेल्स का क्या होगा? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड. क्लियर? So debit the receiver and credit all incomes and gains. Next one, Raina. Dhanraj returned goods of 5,000 as they were not as per requirement. Something new. Oh, yes, sir. Sales returns account and Dhanraj account. Ekdam perfect. Did all of you get this? Batti chamka. Sales return and Dhanraj. Why not purchase return over here? Sir, because we are Because our debtor is giving it back to us. Exactly. Debtor अपने को वापस दे रहा है. उसको sales return बोल. अगर हम लोग किसी को दे रहे हैं तो purchase return. Yes, go ahead, Raina. Tell me what will you debit and what will you credit? Sales return account will be debited and Dhanraj account will be credited. Because sales return is like an expense, so expense increases, so debit. And Dhanraj is our debtor, but means asset, so asset decreases, so credit. Ekdam perfect. Ekdam correct bola. Why Dhanraj is decreasing? Did you all get this? Why Dhanraj is decreasing? धनराज तो एसेट था. एसेट कम कैसे हो गया अचानक से? Because he is now going to give us less. Because he returned the goods. तो क्या वो उतना पैसा देगा जो रिटर्न कर दिया उसका भी पैसा देगा? नहीं. जितना रिटर्न करेगा, जितना डिफेक्टिव माल आ गया उतने से डेटर कम हो गया. तो धनराज डेटर डिक्रीजेस, राइट? फॉर क्रेडिट. एंड सेल्स रिटर्न इज लाइक एन एक्सपेंस. एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. इज दिस क्लियर? मुझे अपना शर्लॉक होम्स वाला दिमाग यूज करके बताओ. क्या बताओगे कि भाई धनराज से अपने को कितना पैसा लेना है? 20,000. कितना पैसा लेना है? 20,000. 25 ना? Sir, 5,000 ये return back. No, 5,000 return हो. All of you are getting that? तो 25 minus 5. अभी कितना लेना बाकी है? 20,000 लेना बाकी है from धनराज. Is this clear? So in case we return the goods that were given back to us, we exchange the goods, so then the entry will be sales and Dhanraj. हाँ, धनराज and वापस धनराज account debit to sales. And फिर उससे वापस 25,000 लेने का बाकी. अगर रिप्लेस करके फ्रेश गुड्स दिया तो. Sir, if once this transaction is settled and then he gives us that goods, then it would be a new transaction. Then it will be a new transaction because once the transaction is settled ना now, पूरा पैसा आ गया और बाद में उसने रिटर्न किया कुछ डिफेक्टिव, तो फिर अभी टर्म्स एंड कंडीशन पे या तो फ्रेश गुड्स दे दो या तो पैसे दे दो. दोनों में से पैसे दे दोगे तो सेल्स रिटर्न टू कैश हो जाएगा. और वापस अगर फ्रेश गुड्स देने वाले हो तो पहले सेल्स रिटर्न टू धनराज, जैसे अभी क्या सेल्स रिटर्न डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा, सेल्स रिटर्न टू धनराज और फिर वापस फ्रेश गुड्स दिया धनराज. गॉट इट? एंट्रीज एंड ट्रांजैक्शन वुड बी सेम. सेटलमेंट के बाद करें रिटर्न की सेटलमेंट से पहले, दोनों में सेम ही कर. देन 11th वन, हंसिका बताइए. परचेज फर्नीचर इन कैश. Furniture account to cash account. Furniture is an asset increases, so debit and cash asset decreases. So एकदम परफेक्ट. ओके. फर्नीचर एसेट बढ़ा तो डेबिट, कैश एसेट घटा तो क्रेडिट. बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश. बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश. एकदम करेक्ट. 14th वन, यशवी गंगल
paid to Mahesh the balance amount by check of Bank of India 18,000 rupees. Bank of India account and Mahesh account. Very good. Mahesh and Bank of India, absolutely right. You can write bank also or Bank of India, both are fine. Now tell me, what should you debit and what should you credit? Mahesh account will be debit. Yes. Mahesh account debit. Personal. हाँ, reason बोलो. बोलो बराबर. Mahesh account will be personal. Yes. So we are paying Mahesh. क्या रूल अप्लाई होगा महेश को? पर्सनल का रूल क्या है यशवी? Debit the receiver. Debit the receiver. Mahesh is the receiver. Debit the receiver. And बैंक क्या है? ट्रेडिशनल में बैंक क्या है? Personal. पर्सनली है, करेक्ट. तो आपने महेश को पैसा दिया, चेक से दिया. Credit the giver. Credit the giver. बैंक से जा रहा है. Bank is the giver. Bank is the giver. Right? So debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. How will you apply modern? What is Mahesh in modern? Liability. Liability. उधार था ना, उधार. देखो ऊपर चेक करो, आपने ही बोला था महेश को कितना पैसा देना था. How much were we supposed to pay to Mahesh? 18,000. Are we giving 18,000? Yes. They are giving in full 18,000. Got it? So 18,000 से liability बढ़ा कि घटा? घटा. 18,000 से liability घटा. And what about bank? Bank क्या है business के लिए? Asset. Bank is an asset. Asset बढ़ा कि कम हुआ? Decrease. तो liability घटा तो debit, bank asset घटा तो credit. Mahesh to Bank of India amount कितना आएगा? 18,000 is the amount being amount paid to Mahesh. या Mahesh account settled by check. Being amount paid to Mahesh by Sir, check. I wrote being balance amount paid. Yes, being balance amount paid to Mahesh. Being balance amount paid to Mahesh. So we have to mention to Mahesh. नहीं, balance amount paid भी चाहिए. So can we write being amount paid to Mahesh? Amount paid to Mahesh. So भी चाहिए. Then received a bearer check of 20,000 from Dhanraj. Now, before we hop on to that bearer check, I want you to understand there are 3 types of checks. Okay, 3 types of checks. Okay, what are the 3 types? आप जो check बनाते हो ना business में 3 प्रकार के होते हैं. एक होता है bearer check, एक होता है order check और एक होता है क्रॉस्ड चेक. इसमें से फिलहाल मैं आपको एकदम बेसिक सेंस में बता रहा हूं, फिर हम लोग डिटेल में वापस लर्न करेंगे. जब थियरी करवाऊंगा तब चेक्स का सब डिटेल बताऊंगा मैं आपको. ऑर्डर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ऑर्डर खासकर इतना यूज नहीं होता. बेरर चेक और क्रॉस चेक ये अच्छे से समझ. बेरर और क्रॉस में क्या फर्क होता है, क्या आपको मालूम है? Bearer check is a blank check where the name is not written. ब्लैंक नहीं है, नाम तो लिखा हो सकता है, लेकिन आपने देखा ये ऐसा कुछ दिखता है चेक. दिस इज समवॉट अ फॉर्मेट ऑफ अ चेक, राइट. इधर डेट होता है आपका, इधर बैंक के नाम डिटेल होता है. दिस इज समवॉट अ चेक लुक्स लाइक, करेक्ट. अब चेक तो सबने देखा है ना बॉस. अब बेरर चेक और क्रॉस चेक में फर्क क्या है, ध्यान से देखना. जब आप अभी मुझे समझो चेक देना है माही को, आई वांट टू गिव अ चेक टू माही, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पे माही शाह. मतलब आई वांट टू पे माही शाह. लेट अस से सम ऑफ रुपीज 5,000. 5,000 का चेक है, इधर 5,000 इधर 5,000, ठीक है. 5,000 रुपीज का चेक है आपका. और
मैं ये बेरर को ऐसे ही रहने देता हूं और बेरर को कट नहीं करता, दिस इज कॉल्ड एज अ बेरर, दिस इज कॉल्ड एज अ बेरर। ओके, तो मैंने माही को बेरर चेक दे दिया। ओके, अब माही के हाथों वो चेक घूम गया और वो चेक मिला भौमिक को, तो भौमिक जाएगा बैंक में और बोलेगा बेरर चेक है, पैसा लाओ, तो बैंक उसको पैसा दे दे, क्योंकि उसमें क्या है, और बेरर मतलब पे टू माहिशा, और बेरर मतलब जिसके हाथ में चेक है उसको पैसा दे दो। तो वेरी रिस्की मोड ऑफ पेमेंट, वेरी रिस्की बेरर चेक। प्रेजेंट डे में बिजनेस ट्रांजैक्शन में बेरर चेक ज्यादा यूज नहीं होता। 95-99% ऑफ द चेक्स आर क्रॉस्ड चेक, क्योंकि आपको पता चल गया होगा काय को, इट इज वेरी रिस्की, राइट। इफ यू डू नॉट कट द बेरर, जिसके हाथ में चेक है, कल उठ के माही से रिवान ने चेक चोरी कर लिया और रिवान जाके बोलेगा बैंक में, बताएगा ये चेक है, उसको मिल जाएगा पैसा, बैंक मिलना चाहिए था माही को, लेकिन मिल जाएगा किसी और को। अब तो बैंक भी बहुत केयरफुल हो गए हैं, बैंक ऑल्सो चेक योर आईडी प्रूफ एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे माही शाह का नाम लिखा है ना, तो अभी बैंक क्या करते हैं, आपसे माही शाह का लेटर मांगते, कंसेंट लेटर लेके आओ पहले, एक्नॉलेजमेंट साइन करके, तो ही पैसा मिले। एरा गेरा किसी के भी हाथ में बेरर चेक का पैसा देता नहीं है बैंक, दे हैव अंडरस्टूड दैट। बट बेरर चेक आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हार्डली एनीवन ड्रॉज, इट इज स्टिल टू रिस्क। ओके, तो बेरर चेक नहीं ड्रॉ करते हैं। तो बेरर चेक का यूज क्या होता है, बेरर चेक का एक यूज होता है, ये आपने शायद देखा भी होगा काफी लोगों ने, आप यहाँ पे सेल्फ लिखते हो, ऐसा देखा है आपने, पे सेल्फ, यस, पेरेंट्स ने कभी ड्रॉ किया होगा पे सेल्फ, ये मेन यूज होता है। पे सेल्फ मतलब क्या है, आप अपने आप को पैसा देना चाहते हो, मतलब आप ये चेक बैंक में दिखा के पैसा निकाल सकते हो अपने अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट में से आपको पैसा निकालना है, विड्रॉ करना है, तब आप बेरर चेक का यूज कर सकते। ओके, दैट इज द ओनली यूज ऑफ बेरर चेक इन नाउअडेज। आप विड्रॉवल स्लिप से भी करवा सकते हो, बैंक में विड्रॉवल स्लिप होती है, उसको भर के भी निकलवा सकते हो, एटीएम कार्ड के थ्रू भी निकाल सकते हो, या फिर ये भी एक तरीका है जहां से आप अपने ही बैंक अकाउंट में से पैसा निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, पे सेल्फ, आपकी चेकबुक में जो चेक होता है उसमें पे सेल्फ लिख देने का, अमाउंट भर देने का, इधर साइन कर देने का खुद का, एंड यू कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम योर ओन बैंक। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बेरर। इज दिस क्लियर? अब हाँ, So, sir, you written Mahisha. After that, we can write or bearer. So, if someone gets, he can remove if bearer is written near the page. और बेरर चेक में प्रिंटेड होता है, आप देखो चेक ध्यान से, और बेरर चेक में प्रिंटेड होता है। That means we need to cancel that. We need to cancel that. If you cancel it like this, then it is no more a bearer check. Then it is no more a bearer check. Now the money will go to Mahisha. No one else will get the money. Got it? अब ये हुआ बेरर चेक। अब क्रॉस्ड चेक का मतलब क्या है? What is the meaning of cross? How do you cross a check? At the corners. ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा दो लाइन मार के आप चेक देते हो, ये होता है क्रॉसिंग। ओके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग। ऐसे भी मार सकते हो या फिर ऐसे भी मार सकते हो, ये भी क्रॉस चेक है। ओके, ऐसा दो। इसका फिर मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब बताता हूँ। अभी मैंने माहिशा को चेक दिया, ओके, और बेरर कट करो ना करो डज नॉट मैटर, ये दो लाइन आ गया ना, ये क्रॉस। ओके, ये क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का मतलब, और पता है आप कभी कभी इसमें लिख देते हो अकाउंट पे या अकाउंट पे ओनली एंड कंपनी, ऐसा कुछ लिख देते हो अंदर। तो अंदर कुछ मसाला लिखोगे ना तो इट इज कॉल्ड एज स्पेशल क्रॉसिंग, और मसाला नहीं लिखोगे तो इट इज कॉल्ड एज जनरल क्रॉसिंग। अब जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है, आप दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, मैंने चेक दिया है माहिशा को, अब ये पैसा माहिशा को ही जाने वाला है, नंबर 1। ओके, और माहिशा को अक्रॉस द काउंटर नहीं मिलेगा पैसा। बेरर चेक में कैसा,
चेक बताया, पैसा मिल गया ताबड़तोड़ बैंक में से। तो वैसा माहिशा अगर चेक बताएगी बैंक में तो उसको ताबड़तोड़ पैसा नहीं मिलेगा, उसको चेक डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक, वो स्लिप विप भर, और पैसा खाली माहिशा के अकाउंट में जाए। पैसा विल गो ओनली टू माहिशाज अकाउंट, बैंक अकाउंट। अक्रॉस द काउंटर रोकड़ा देता ही नहीं है बैंक। क्रॉस्ड चेक इसीलिए मोस्ट सेफेस्ट मोड ऑफ पेमेंट। सेफेस्ट मोड क्यों? क्योंकि ये पैसा और किसी को जाएगा ही नहीं। माहिशा का नाम है ना, तो माहिशा का आईडी प्रूफ चेक करके माहिशा के खाते में पैसा जाने वाला, और किसी को जाने वाला नहीं। तो इसका मतलब क्या है? एंड कंपनी अकाउंट पे, या अकाउंट पे लिखने का मतलब क्या है? अकाउंट पे लिखने का मतलब है कि खाली माहिशा के अकाउंट में पैसा जाएगा। तो जनरल क्रॉसिंग में क्या हो सकता है? जनरल क्रॉसिंग में माही के पास एक ऑप्शन है। जनरल क्रॉसिंग में माही के पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? वो चेक के पीछे साइन कर सकती है, खुद साइन कर सकती है, और किसी को फॉरवर्ड कर सकती है वो पेमेंट। अगर समझो माही हैज टू पे हितार्थ 5,000, माही हैज टू पे हितार्थ 5,000, तो अगर ये चेक जनरल क्रॉसिंग वाला है, जनरल क्रॉसिंग वाला मतलब खाली 2 लाइन्स पर, तो माही जो है चेक के पीछे लिख सकती है एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ हितार्थ, एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ हितार्थ का पूरा नाम हितार्थ गड़ा, ओके, हितार्थ का अकाउंट नंबर जो भी है लिख लेगी, अकाउंट नंबर, और साइन कर ली। तो अब ये चेक वो दे देगी हितार्थ को, और पैसे जाएंगे किसके अकाउंट? माही के अकाउंट में नहीं, हितार्थ के अकाउंट। माही के अकाउंट में नहीं जाएंगे पैसे, हितार्थ के अकाउंट। तो मैंने माही को पैसा दिया, माही ने वो पैसा किसको दे दिया? हितार्थ को। तो ये किस में पॉसिबल है? ये जनरल क्रॉसिंग में पॉसिबल। तो प्रेजेंट डे में आप जनरल क्रॉसिंग भी ज्यादातर नहीं बनाते। जनरल क्रॉसिंग के अंदर आप कुछ लिखते हो, आप ये लिख देते हो अकाउंट पे, या अकाउंट पे ओनली, या पे, या एंड कंपनी, कुछ भी मसाला लिख दो अंदर, अकाउंट पे ओनली, एंड कंपनी। तो इससे क्या होगा? नाउ कैन माही ट्रांसफर इट टू हितार्थ? नो, नाउ द मनी विल गो ओनली एंड ओनली टू माहीज बैंक। नाउ द मनी विल गो ओनली एंड ओनली टू माहीज बैंक अकाउंट। एरा गैरा नथु कैरा, कोई चेक चोरी हो जाए, किसी के हाथ लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेफेस्ट, मोस्ट सेफेस्ट मोड ऑफ पेमेंट इज स्पेशल क्रॉसिंग। इसलिए आपने देखा होगा आपके मॉम डैड जो भी चेक्स देते होंगे ज्यादातर बिजनेस में या घर पे सेविंग्स अकाउंट में से, उसमें ऐसा क्रॉस करके अकाउंट पे ही लिखते। अकाउंट पे का रीजन क्या है? समझ में आया आपको? कि मैंने हितार्थ को चेक दिया तो पैसा हितार्थ के खाते में, मैंने माही को चेक दिया है पैसा माही के ही खाते में, माही के ही बैंक में, किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फॉरवर्ड किस में पॉसिबल है? फॉरवर्ड किस में कर सकते हो आप? जनरल क्रॉसिंग में आप फॉरवर्ड कर सकते, एंडोर्स कर सकते। बात समझ में आई? और सबसे खतरनाक वाला होता है बेरर। बेरर में क्या होता है? ये क्रॉसिंग ही नहीं किया आपने, और बेरर को कैंसिल भी नहीं किया, ऐसे ही रखा, और बेरर ऐसे ही रहने दिया आपने। अब क्या होगा? अब पहला रिस्क माहिशा को नसीब में है तो उसको मिलेगा पैसा, लेकिन और बेरर मतलब जिसके हाथ में उसको पैसा मिल जाएगा, और अकाउंट में नहीं जाएगा, अक्रॉस द काउंटर मिल जाएगा। अक्रॉस द काउंटर यू कैन गेट कैश। ये किस में पॉसिबल है अक्रॉस द काउंटर पैसा रिसीव करना? बेरर चेक। बेरर चेक, और कोई चेक में पॉसिबल नहीं। अक्रॉस द काउंटर पैसा रिसीव करना खाली बेरर चेक, क्रॉस में कभी नहीं, जनरल में भी नहीं, स्पेशल में भी नहीं। ओके, इज दिस क्लियर? ऑर्डर में भी नहीं होता है, ऑर्डर में थोड़ा सा वेरिएशन है, वो मैं आपको बताऊंगा व्हेन आई डू ऑर्डर चेक। फिलहाल ये दो क्लियर हुए आपको? बेरर चेक एंड क्रॉस चेक क्लियर है सबको? बेरर चेक में इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई चेक बनाओ तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस हैबिट, व्हेन दे मेक अ चेक व्हाट दे डू लाइक दिस क्रॉसिंग, दे राइट अकाउंट पे एंड दे कैंसल आल्सो दिस बेरर। कोई कोई तो एकदम खतरनाक रीत से कैंसिल।
तो बेरर भी कैंसिल करते हैं, क्रॉस भी कर देते हैं, डबल सिक्योर। एक्चुअली आप क्रॉस कर दो ना तो बेरर करो मत करो डज नॉट मैटर, क्रॉसिंग आ गई मतलब खत्म, क्रॉसिंग आ गई तो बैंक अकाउंट में ही जाए, अक्रॉस द काउंटर पैसा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब आपके ट्रांजैक्शन में आपको कैसे डील करना है देखो, अभी तक हमने खाली देखा था चेक, राइट? तो हमने क्या अज्यूम करना है, खाली चेक दिया है ना, तो कौन सा चेक अज्यूम करना है, बेरर चेक कि क्रॉस चेक? क्रॉस, और वो भी कौन सा वाला, स्पेशल क्रॉस। तो अपने को नॉर्मल ट्रांजैक्शन में चेक दिख रहा है, चेक, तो कौन सा चेक अज्यूम करने का, क्रॉस चेक, स्पेशल क्रॉस। आपको समझ में आया स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है? स्पेशल क्रॉसिंग Directly payment in the account. डायरेक्टली पेमेंट इन द अकाउंट। कैसे करना है स्पेशल क्रॉसिंग? दो पैरेलल लाइन और अकाउंट पे एंड कंपनी, अकाउंट पे ओनली पे, ओके, ये लिख दोगे तो आपका सीधा खाते में ही जाने वाले। तो नॉर्मल चेक्स दिया है ट्रांजैक्शन में तो वी अज्यूम दे आर क्रॉस चेक्स। इज दिस क्लियर? व्हिच हैपेंस प्रैक्टिकली इन द अ लॉट। अब मुझे चेक मिला है, नॉर्मल चेक मिला है फ्रॉम राम, तो व्हाट आर द टू अकाउंट्स हैविंग? बैंक एंड राम, राइट? मैंने किसी को चेक दिया, नॉर्मल चेक, वापस राम एंड बैंक। बट suppose I am getting a bearer check from some. I am getting a bearer check from some. Okay, now stay with me. This is very important. If you are getting a bearer check from someone, I got a bearer check from Ram. So I've got two options. Option number one, I can deposit it into the bank. पर्ची वर्ची भर के मैं deposit कर सकता हूँ, like a cross check. Or there is one more option in bearer check. What is that option? I can take the money directly across the counter in the bank, जमा किए बिना, अकाउंट में ट्रांसफर किए बिना, ताबड़तोड़ मैं चेक देके पैसे ले सकता हूं बैंक से। ये भी ऑप्शन है ना मेरे पास। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम में जब भी बेरर चेक दिखाई दे, क्या दिखाई दे? बेरर चेक रिसीव, नॉट पेड, बेरर चेक रिसीव, तो उसके लिए बैंक अकाउंट यूज नहीं करने का, कैश अकाउंट। ट्रीट दैट बेरर चेक लाइक कैश, ट्रीट दैट बेरर चेक लाइक कैश। ओके, क्या बोला सुना? बेरर चेक जब भी रिसीव करते हो ना, तभी बैंक अकाउंट यूज नहीं करने का, क्या यूज करने का? कैश अकाउंट। ओके, पहले एंट्री लिख लो, फिर मैं आगे का कहानी बताता हूँ। अभी रिसीव्ड अ बेरर चेक फ्रॉम धनराज, तो व्हाट विल बी द टू अकाउंट? कैश अकाउंट and Dhanraj account. रिसीव, तो कैश अकाउंट है धनराज। ठीक है, अब कितना लेना था धनराज से ऊपर, हमने चेक किया था, हाउ मच वर वी सपोज्ड टू रिसीव फ्रॉम धनराज? 20,000. वो दे रहा है, बराबर है। और क्या डेबिट करोगे, क्या क्रेडिट करोगे? Cash account will be debited and Dhanraj account will be credited. कैश अकाउंट डेबिटेड एंड धनराज अकाउंट क्रेडिटेड, बराबर है। नाउ कैश अकाउंट डेबिट एंड धनराज अकाउंट क्रेडिट, ये अमाउंट आएगा 20,000। अभी आपके पास दो ऑप्शन है ये चेक के साथ, बेरर चेक रिसीव फ्रॉम धनराज, being bearer check received from Dhanraj. You have two options what to do with this check. Number one, you can deposit it in bank, right? चेक जमा करवा सकते हो। अगर आपको रोकड़ा नहीं चाहिए, आपको अक्रॉस द काउंटर पैसा नहीं चाहिए, तो आप उसको अपने अकाउंट में डाल सकते हो। तो अकाउंट में डालने का मतलब क्या? आपने ये चेक डाल दिया बैंक में, लेकिन बुक्स में क्या दिख रहा है, जर्नल में क्या दिख रहा है? वो चेक कौन से नाम से दिख रहा है? वो चेक कैश। तो अगर ये चेक आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो इट इज एज गुड एज डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपने चेक अगर बैंक में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करने का मतलब वो स्लिप में भर के डाल दिया अकाउंट, तो इट इज एज गुड एज डिपॉजिटिंग कैश इन द बैंक। अकाउंट में अभी जर्नल में तो कैश लिखा है, तो व्हाट इज द एंट्री फॉर पुटिंग द कैश इनटू द बैंक? Cash to bank.
Entry. Bank is the receiver and cash is going out. So bank to cash. Are you getting that? वो कब आएगा? अगर आप उसको अकाउंट में जमा करवाओगे, बेरर चेक को अकाउंट में जमा करवा दोगे तो. That is one choice. What is the other choice? In bearer check, what is the other choice? You can give it to someone else. वो भी कर सकते हो आप, एंडोर्स भी कर सकते हो आप, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. जनरल क्रॉसिंग में भी है, इसमें भी है. किसी और को देना है, बता दो ना आपको, माही को हितार्थ को देना है तो दे सकता है, बराबर है. ऐसे हमको ये बेरर चेक भी किसी और को देना है तो हम लोग दे सकते हैं, पीछे साइन. दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. और एक बोला मैंने आपको, मेन we can take money हाँ, immediately. we can take money across the counter. मतलब आप खाली बैंक में जाओगे, ये चेक दिखाओगे और आपको बैंक से पैसा मिल जाए. आप बैंक में जाओगे, ये चेक दिखाओगे और आपको बैंक से पैसा मिल जाएगा ताबड़तोड़. तो मुझे बताओ, आपने क्या किया? आपने चेक दिया और कैश लिया, बराबर है. चेक दिया और कैश लिया, लेकिन वो चेक बुक में क्या नाम से दिख रहा था? कैश. तो आपने कैश दिया और कैश लिया. विल देयर बी एन एंट्री फॉर पेइंग, गिविंग कैश एंड टेकिंग कैश? कैश दिया और कैश लिया, कुछ एंट्री में फर्क हुआ? नहीं. तो अगर उसको बोलते हैं एनकैशमेंट ऑफ अ बेरर चेक. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एनकैशमेंट ऑफ अ बेरर चेक. एनकैशमेंट का मतलब क्या? आपके पास बेरर चेक आया, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया. डिपॉजिट किया होता ना तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश बैलेंस घटेगा, तो बैंक टू कैश. बट आपने उसको डिपॉजिट नहीं किया, आपने ताबड़तोड़ चेक दिखा के पैसा ले लिया. चेक दिया, कैश लिया, चेक दिया, कैश लिया. तो चेक बुक में कैश ही दिख रहा था, तो कैश दिया, कैश लिया. डज इट मेक एनी डिफरेंस इन योर कैश अकाउंट, इन द बुक्स? कुछ पैसा बढ़ा, कुछ पैसा कम हुआ? कैश तो था ही पहले से, कैश फॉर्म में ही दिख रहा था चेक. आर यू गेटिंग दैट? सो एनकैशमेंट का कोई एंट्री होता ही नहीं. एनकैशमेंट का कोई एंट्री नहीं, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. ये एनकैशमेंट आगे आएगा, थोड़ा थोड़ा और डिटेल में समझ आएगा आपको. फिलहाल इतना खाली बेसिक समझो कि आपको अगर क्रॉस चेक मिलता है, तो पैसा किधर जाने वाला है आपका? क्रॉस चेक मिलता है तो पैसा किधर जाएगा? तो बैंक अकाउंट यूज. बैंक बैलेंस बढ़ेगा और डेटर घटेगा, जो भी है. बट अगर बेरर चेक मिलता है तो हाउ विल यू ट्रीट दैट बेरर चेक इन योर बुक? Cash. Right now don't write bank, right now write only cash. Okay, then when you deposit it into the bank, it will be bank to cash. When you deposit it, it will be bank. एनकैशमेंट आगे आएगा. एनकैशमेंट मतलब चेक दिया, कैश ले लिया, कैश टू कैश नो एंट्री. एनकैशमेंट का कोई एंट्री नहीं. तो अपने को मालूम नहीं है ना क्या होने वाला है विद द चेक, सो दैट्स व्हाई वी राइट कैश अकाउंट एज ऑफ. अच्छा, दिस इज फॉर बेरर चेक रिसीव. लिसन वेरी केयरफुली. दिस इज फॉर बेरर चेक रिसीव. व्हाट इफ यू पे एनीवन बाय अ बेरर चेक? यू पे एनीवन बाय अ बेरर चेक, तो फिर पैसा कहां से जाने वाला? बैंक से ही जाएगा. आप क्रॉस चेक दो, बेरर चेक दो, ऑर्डर चेक, कोई भी चेक आप दे रहे हो ना, ले नहीं रहे हो, दे रहे हो. आप कोई भी चेक से पेमेंट कर रहे हो तो पैसा किधर से जाएगा? Will रोकड़ा go out of the business or the money will go from your bank? Bank, right? आप कोई भी चेक से पैसा देते हो तो पैसा तो बैंक से ही जाएगा. तो देते वक्त कुछ देखना ही नहीं है. देते वक्त एनी चेक इज बैंक. देते वक्त एनी चेक इज बैंक. लेते वक्त क्रॉस्ड चेक इज बैंक, बेरर चेक इज कैश. Cross check is bank, bearer check is cash. Is this clear? ये लेने का ही लफड़ा है, देते वक्त कोई लफड़ा नहीं. देते वक्त पैसा बैंक से ही जाता, तो बैंक के लिए. लेते वक्त क्रॉस चेक है तो बैंक, नॉर्मल चेक है तो बैंक, कुछ नहीं दिया है तो बैंक. बेरर चेक रिसीव्ड खाली दिया है, बेरर चेक रिसीव, तब कैश अकाउंट. इज क्लियर? तो ये याद रखना, आगे और डिटेल में आएगा इसका कंसेप्ट. फिर आगे देखो 30th, पेड सैलरीज बाय चेक.
Very simple. Salaries by check. What will be the two accounts? Salary account, Salary bank account and account. bank account. Salary account and bank. अभी आप चेक से दे रहे हो तो बैंक ही यूज करना है, दे रहे हो तो. So क्या डेबिट करोगे, क्या क्रेडिट करोगे? Salary account debit and bank account credit. Salary account debit and bank account. Absolutely right. Salary account debit to bank. Okay. Being salary paid by check. Okay, that completes the problem. Bolo, any doubts in particular? Anything you want to ask? Return समझा? Returns. So, हाँ. In the 14th one, can we write the narration as being Mahesh account settled by check? Yes, being Mahesh account settled by check. दौड़ेगा. Perfect. बोलो. Return समझा बराबर से returns. If you're comfortable with returns. Sir, in this last one, do we need to mention my being salary paid? हाँ, that's also fine. Being salary paid is also. Check cash mentioned. Being salary paid is also. Sorted? Returns, main thing were returns. All of you got returns part. Check तो काफी बार आए. Don't worry about it. Cross check खाली अभी इतना याद रखो, cross check के लिए बैंक whereas check received है तो क्या? Sir, in case there's a problem that salary received by bearer check, then we'll have to write salary account and cash. Will we receive salary पहले तो? We can receive. हम लोग receive नहीं करेंगे. We can receive commission. Can receive commission by bearer. Yeah. So then it will be cash and commission. Received interest by bearer. So cash and interest. Right? Received rent by bearer. Cash and bearer check received के लिए cash. Now we are moving to a very important new concept of discount. There are two types of discounts in a business. Okay. Two types of discounts in a business. They are called as trade discount and cash discount. Trade discount and cash discount. ठीक है? Trade discount and cash discount. ये लिखना नहीं है आपको, ये सब मैंने आपको दिया हुआ है. आप अगर टर्न करोगे ना पेज नंबर ये वाला 29, पेज 29 पे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जर्नल दिए हुए, जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते. जर्नल सिली है, तो बिफोर एनी टेस्ट और एग्जाम, जर्नल का एग्जाम जब होगा ये रिवाइज करके आना है. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए हुए, तो टेंशन वाली बात नहीं है. ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का भी दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 8 में दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट कैश. ठीक है, वो सब दिया हुआ है, so no need to worry about that. Now coming back to trade discount and cash discount. See, what is a trade discount and what is a cash discount? Let's understand this. आपने सुना होगा कभी मार्केट में जाते हो आप, टमाटर खरीदने जा रहे हो, आप पूछ रहे हो कि क्या भाव दिया टमाटर, वो बोलेगा 50 रुपया किलो. फिर आप बोलोगे कि 3 किलो लेना है, कुछ कम करोगे क्या? वो करता है कि नहीं करता? करता है, राइट? 50 रुपया किलो है, समझो 50 रुपीज अ केजी है. आपने 3 किलो लेना है, 3 केजीज लेना है, तो बोलोगे कुछ कम करके दे, तो बोलेगा ठीक है 40 रुपीज कर देता हूँ, 3 केजी का 40 रुपीज अ किलो कर देता हूँ. बार्गेन करती है ना मम्मी आप, तो 40 रुपीज जो उसने कम किया, 50 से 40 लाया ना प्राइस, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट. ये 10 रुपए का जो दिया उसने पर किलो, दैट वाज अ ट्रेड डिस्काउंट. इज क्लियर? सो ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग होता है whenever you buy the goods in bulk quantity. Whenever you buy the goods in bulk quantities or you sell the goods in bulk quantities and the discount which you get or which you allow, that's what is called as a trade discount.
That's what is called as a trade. Is this clear? So trade discount is mainly allowed. इसका रीजन क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करने का? आपका क्या टारगेट है पीछे? For selling in bulk. For selling in bulk. आपको वॉल्यूम्स बढ़ाने हैं ना, इसलिए आप क्या करते हो? ट्रेड डिस्काउंट. This is what is called as trade. Understood? Now, in my business, suppose I'm selling mobile phones. Selling mobile phones, and there is one mobile phone of 10,000 rupees. Okay, one mobile phone of 10,000 rupees. ये मेरे को 10,000 में पड़ा हुआ है और मैं इसको बेचने वाला हूँ 15,000. The selling price of one mobile phone is 15,000. Okay. और कोई बंदा आया और मुझे बोला मुझे 10 मोबाइल फोन साथ में खरीदने हैं, कोई डिस्काउंट दोगे क्या? मैंने बोला पहले तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि भाई मेरे को कितना में पड़ा था, 10,000 में पड़ा था. दिस इज माय कॉस्ट प्राइस. बराबर है, ये मेरा कॉस्ट है, मेरे को 10,000 में पड़ा था. मैं इसको बेचने वाला हूँ 15,000 में और उसको चाहिए 10 मोबाइल फोन. तो पहले तो मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा कि 10 मोबाइल फोन का भाव कितना होता है वैसे. तो 15,000 into 10 ये होता है 1,50,000. बराबर है. इसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस प्राइस. ग्रॉस प्राइस कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? ग्रॉस प्राइस. ग्रॉस प्राइस के 5 नाम है. इसको ग्रॉस प्राइस भी कहते हैं, इसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, इसको मार्केट प्राइस भी कहते हैं, इसको एमआरपी भी कहते हैं, इसको कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं. सबका मतलब एक होता है. ग्रॉस प्राइस, लिस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, एमआरपी. आप जो देखते हो ना गुड्स पे एमआरपी, ये सब यही होता है. ओके, इसको कहा जाता है ग्रॉस प्राइस. 1,50,000 रुपये. ठीक है. अब 1,50,000 रुपए का आपका ग्रॉस प्राइस, वो बोल रहा है कि 10 मोबाइल फोन खरीदेगा, कुछ कम करो. तो आपने क्या सोचा, चलो 10 मोबाइल फोन खरीद रहा है, कुछ तो डिस्काउंट दे देते हैं उसको, कुछ तो डिस्काउंट दे देते हैं. तो आप क्या करोगे? लेट अस अज्यूम 10%, 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 10% कम कर दो. व्हाट इज 10%? 10% ऑफ 1,50,000 कितना होता है? 15,000. 15,000 होता है. You know how to calculate this percentage, right? 1,50,000 into 10 by 100, 15,000. So how much is your final selling price to that customer? 1,35,000. 1,35,000. Are you selling the goods at loss? No. You are still selling them at profit, right? आपको तो 10,000 में पड़ा, 10 का मतलब 1,00,000 का आप 1,50,000 में बेचने वाले थे, अभी 1,00,000 का 135 में बेच. Still 35,000 is your profit, right? You are at profit, you are safe. So इसको कहा जाता है नेट प्राइस. This is what is called as net price. तो आपका जो बिल बनता है ना, बिल, इनवॉइस, वो ये प्राइस का. एमआरपी कहीं रिकॉर्ड नहीं होता. एमआरपी एक इमेजिनेशन. आपने 10,000 का मोबाइल खरीदा था, आपने इमेजिन किया था कि आप 15,000 में बेचोगे. आपने कहीं लिख के रखा था कि ये मैं 15 में बेचूंगा, ये मैं 15 में बेचूंगा. क्या कुछ रिकॉर्ड रखा था उसका, ये मैं 15 में ही बेचूंगा? ये तो आपका दिमाग में आपने सोचा था. दिस वाज योर इमेजिनेशन. एक्चुअली आपने कितने में सेल किया डिस्काउंट देने के बाद? 135 में सेल किया. तो जो इनवॉइस बनेगा ना, इनवॉइस या बिल, वो कितने अमाउंट का बनता है? कितना अमाउंट का बनता है? 135. इज दिस क्लियर? तो ट्रेड डिस्काउंट का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है, इट इज अ डिस्काउंट गिवन फॉर बल्क परचेज. ओके, बल्क परचेज एंड बल्क सेल. बल्क परचेज एंड बल्क सेल के लिए डिस्काउंट दिया जाए. नंबर टू,
It is calculated on gross price. It is calculated on gross price. GP का मतलब समझा, ग्रॉस प्राइस इमेजिनरी जो आपने सोच के रखा था उस पे कैलकुलेट होता है. अच्छा, अभी क्योंकि आपका इमेजिनेशन था 1,50,000, उस पे आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो प्राइस ही कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, तो डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड करोगे आप बुक्स में? प्राइस ही नहीं है तो डिस्काउंट कहां से होगा? तो ये डिस्काउंट कभी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखता ही नहीं है. ये डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड. इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ, नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ, नेवर 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 एवर, कभी रिकॉर्ड नहीं होता. क्योंकि आपके दिमाग में था 1,50,000 में बेचूंगा, 1,50,000 में बेचूंगा, 1,50,000 में बेचूंगा. कोई बल्क में आया, आपने 135 कर दिया प्राइस. अच्छा, कल उठ के कोई और बोल रहा है कि मैं 20 मोबाइल फोन खरीदूंगा एक साथ, मुझे और डिस्काउंट दो. 20 मोबाइल फोन साथ में खरीदूंगा और डिस्काउंट दो. तो आप क्या करोगे? हाँ चलो 10 का 12% डिस्काउंट दे देते हैं, 10 का 12% डिस्काउंट दे देते हैं. दोगे कि नहीं दोगे? दोगे. 20 मोबाइल खरीद रहा है साथ में, तब आपका प्राइस क्या होगा? और कम हो जाएगा. तो आपका जो बिल बनता है ना, बिल, इनवॉइस, वो कौन से प्राइस का बनता है? ग्रॉस प्राइस का बनता है कि नेट प्राइस का? नेट प्राइस. बात समझ आई? सो नेट प्राइस का बिल बनता है, तो नेट प्राइस रिकॉर्ड होता है बुक. अभी समझो मैंने ये गुड्स लौकिक को सेल किया, तो कितने में सेल किया है? व्हाट इज माय सेलिंग प्राइस? अल्टीमेट सेलिंग प्राइस 1,35,000 नेट प्राइस. नेट प्राइस. तो मैं एंट्री क्या मारूंगा? लौकिक टू सेल्स 1,35,000. दिस इज माय एक्चुअल सेलिंग. दिस इज माय एक्चुअल सेलिंग, नॉट 1,50,000. आपको फर्क समझ में आ रहा है 150 और 135 में? 150 कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होता, 15,000 कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होता. इमेजिनेशन है वो आपका. आप तो सोचोगे आप 2 लाख में बेचने वाले हो गुड्स, एक्चुअली कितने में बेच रहे हो वो इंपॉर्टेंट है ना. बिल कितने का बन रहा है वो इंपॉर्टेंट. समझ में आ रही है बात? अब ये था ट्रेड डिस्काउंट. अब दूसरा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट. दूसरा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट. अब कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? अब देखो, मैंने लौकिक को ये गुड्स बेचा, बट हैव आई सोल्ड हिम फॉर कैश और ऑन क्रेडिट? थिंक एंड टेल. इज दिस the entry for cash sale or a credit? Credit. This is on credit. This is on credit. मतलब लौकिक मुझे ताबड़तोड़ पैसा दे रहा है कि 1 महीने बाद पैसा देगा? 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद. करेक्ट. ट्रेड डिस्काउंट तो मैंने दे दिया क्योंकि वो बल्क में खरीदे. ट्रेड डिस्काउंट तो मैंने पहले ही दे दिया क्योंकि वो बल्क में ले रहा है, ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है ना, इसके लिए मैंने ट्रेड डिस्काउंट अलाउ. अब भाई मेरे को पैसा देगा 1 महीने बाद, मैं लौकिक को लालच दूंगा. मैं बोलूंगा लौकिक, अगर तूने आज ही के दिन अभी के अभी मेरे को पैसा दे दिया ना, 135,000 अभी के अभी दे दिया ना, मैं तेरे को 10% और डिस्काउंट देने को रेडी. और ये बिजनेस करता है. क्यों करता है इसका रीजन भी मैं आपको बताऊं. क्या बोला आपने लौकिक को? अभी का अभी ताबड़तोड़ पैसा देगा ना तो और 10% डिस्काउंट दे. तो लौकिक को लालच आएगी, अभी का अभी दे दिया तो चलो 10% बच गया, चलो लेट्स पे इमीडिएटली. तो इमीडिएटली अगर लौकिक ने पैसा दिया इमीडिएटली, तो आप क्या करोगे? आप ये जो नेट प्राइस है ना 1,35,000, ग्रॉस प्राइस नहीं है, 1,35,000 नेट, जितने का बिल बना, जितने का बिल बना उस पे आप 10% और कैश डिस्काउंट कैलकुलेट. तो कितना होगा? 10%. 1,35,000 का 10% 13,500 रुपीज. करेक्ट. 1,35,000 का 10% is 13,500. And how much you will get? ताबड़तोड़ in your hand 1,21,500. 1,21,500. Yeah, 21. This is called as cash price. पहला था ग्रॉस प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद मिला नेट प्राइस, और फाइनल
कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद मिला कैश प्राइस। तो लौकिक को आपने लालच दी, क्या लालच दी? ताबड़तोड़ पैसा देगा तो कैश डिस्काउंट अलाउ करो, तो उसने ताबड़तोड़ दे दिया, आपने 10% और अलाउ किया। क्यों किया आपने? इससे आपका क्या फायदा हुआ आपको समझ में आ रहा है? क्यों आपने डिस्काउंट अलाउ किया? जल्दी कैश मिलने से आपका क्या फायदा हुआ? We can restock. We can restock. Very good. तो सी ट्रेडर के जैसा सोचने का, आपके पास लिक्विडिटी आ गई, कैश आ गया, तो और माल खरीद सकते हो ना मार्केट में से आप। थोड़ा कैश थोड़ा क्रेडिट, कैश पे लोगे तो फटाफट माल आ जाएगा, वो माल खरीद के बेच के आप फटाफट प्रॉफिट कमा सकते हो। यस और नो? तो ये जो 10% आपने दिया है, इसके पीछे एक रीजन है। आपको पैसा आ रहा है, पैसा जल्दी आने से आपको पैसा कहीं और यूज करके और माल खरीद के फटाफट और सेल्स कर सकते हो, ज्यादा टर्नओवर बढ़ा सकते हो। You getting this? Oh, sir. Sir, if the person who is buying he pays immediately, but by check still, so still we will give cash discount or? We will, क्योंकि चेक है ना, वो जनरली 1-2 दिन 3 दिन का ही डेट्स रहता है उसमें। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीना पुराना चेक दे दिया, आगे का चेक दे दिया, then we will not allow anything. But generally the check dates are 1 day 2 day आगे पीछे, so you will give him cash. चेक से पेमेंट करे, NEFT से करे, RTGS से करे, ओके, कैश से करे, डेबिट कार्ड से करे, क्रेडिट कार्ड से करे, आप उसको कैश डिस्काउंट दे ही दो। बट कंडीशन क्या है? उसको ताबड़तोड़ पेमेंट करना जरूरी है। अब सुनो मेरी बात, अगर लौकिक ने बोला कि सर जी आप तो बोल रहे हो कि डिस्काउंट मिल जाएगा, ताबड़तोड़ पैसा करोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन बाबा पैसा ही नहीं है, कोरोना है, माल बहुत ठंडू है, धंधो बहुत ठंडू है, मैं माल बेचूंगा फिर पैसा आएगा फिर चुकाऊंगा आपको 1 महीने बाद। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट पे यू राइट नाउ, सो लौकिक इज नॉट पेइंग मी राइट नाउ, सो विल आई अलाउ हिम एनी कैश डिस्काउंट नाउ? No. सिंपल सा कंसेप्ट। 1 महीने बाद अगर लौकिक मेरे को पैसा देगा तो कितना देगा आप बताओ? 135 ही देगा। 1 महीने बाद अगर देगा तो 135 ही देगा। आज के आज देना बोलूंगा ना तो ही कैश डिस्काउंट, आज के आज दिया तो कैश डिस्काउंट मिले, आज के आज नहीं दिया तो फिर कोई कैश डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। आई बात, ये थियोरिटिकल कंसेप्ट, थियोरिटिकल कंसेप्ट में आज के आज पैसा आना जरूरी। प्रैक्टिकली इसमें भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, अगर कोई धंधे में देखता रहेगा ध्यान देख के, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, पूरा महीना है ना, पूरा महीना उसको महीने के बाद देना है ना पैसा, तो पूरे महीने तक हम लोग लालच देते रहते हैं। अगर तो महीने के एंड में दिया तो 135, आज के आज दिया तो 10% डिस्काउंट, अठवाडिये के बाद दिया, 1 हफ्ते के बाद दिया, 1 हफ्ते के बाद पैसा दिया ना तो 8% डिस्काउंट, 2 हफ्ते के बाद दिया ना तो 6% डिस्काउंट, 4 हफ्ते के बाद दिया ना तो 4% डिस्काउंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप वो लालच कायम रखते, क्योंकि जितना जल्दी पैसा आ जाए उतना बेटर है आपके लिए, आप उतना फास्ट धंधा कर सकोगे, रोलिंग घुमा सकोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो प्रैक्टिकली कैश डिस्काउंट चलते रहते हैं, पूरे महीने तक रहते। हाँ, पूरा महीना वापर लिया, पैसा दिया ही नहीं, 1 महीने के एंड में दिया तो फिर नो कैश, ओके। बट फॉर थियोरी व्हेन यू आर लर्निंग, सो आपको दिमाग में एकदम आइडिया क्लियर रखना है, ताबड़तोड़ पैसा आया तो कैश डिस्काउंट, ताबड़तोड़ पैसा नहीं आया तो कोई कैश डिस्काउंट अलाउ करना है कि नहीं करना? नहीं करना। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट का ताबड़तोड़ पेमेंट के साथ कोई रिलेशन है? Why do you give trade discount? Because the person is buying in bulk. Does it make any difference whether he is paying immediately or if he is buying on credit basis? No. Trade discount का main reason है, it is for bulk purchase. दिख रहा है यहाँ पे bulk purchase. Cash discount का main reason क्या है? It is mainly given for prompt payment. ताबड़तोड़। अच्छा, नंबर 2, यू नेवर रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट बिकॉज इट वाज इमेजिनरी, पहले ही प्राइस इमेजिनेशन में था, उसमें से कम करके आपने दे दिया। बट कैश डिस्काउंट, विल यू रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट इन द बुक्स?
Yes, you have to, क्योंकि आपका बिल बन चुका है, बिल बन चुका है तो सेल्स कितने का दिखाओगे आप? सेल्स कितने का दिखाओगे आप? 1,45,000 का दिखाओगे। तो सेल वैल्यू कितने की है? बिल वैल्यू इज योर एक्चुअल रिकॉर्डिंग। याद है आपको पता था बुक कीपिंग में एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बिल कितने का बना है? 135 का। तो 135 पे आपका बिल बना है तो सेल्स एंट्री होगा 135 का। गॉट इट? अब उसने चलो 1 वीक बाद दिया, 10 दिन बाद दिया, 2-3 दिन में पैसा दिया, जब भी दिया, और 135 के जगह उसने आपको 130 दिया, आपने कैश डिस्काउंट अलाउ किया, तो सेल्स हुआ था 135 का, लेकिन पैसा कितना आया? 130 आया। तो 5,000 का गैप है ना, दैट इज कैश। तो कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक। कैसे रिकॉर्ड करने का वो सब मैं बताऊंगा, बट याद रखना कैश डिस्काउंट will be always recorded. Cash discount always recorded. In fact, आप जितने भी डिस्काउंट सुनते हो ना बिजनेस में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आगे जाके जितने भी डिस्काउंट आएंगे ना, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी डिस्काउंट आएंगे वो सब कैश डिस्काउंट ही होने वाले। ऑल आर कैश। ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ओके, आपने 1,35,000 का सेल किया, फिर भाई ने 130 दिया तो 5,000 का, 120 दिया तो 15,000, 1,34,000 दिया तो 1,000 का कैश। वो सब कैश, सब डिस्काउंट कैश। सर I'll come to that. One second. उसके बाद इट इज नेवर रिकॉर्डेड, सो इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। अच्छा, ये जो है ग्रॉस प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ये कैश डिस्काउंट कौन सा प्राइस पे कैलकुलेट होता है? नेट प्राइस। Net price. It is calculated on net price. It is calculated on net price. And last but not the least, fourth one, trade discount is calculated on both cash and credit transaction. Yes or no? Trade discount is calculated on both cash and credit. Does it matter whether the payment is coming immediately or on a future date with respect to trade discount? No. But cash discount is calculated on which type of transaction? Only cash. Only on cash transaction. Will you give any cash discount on credit transaction? No. Concept समझा दोनों डिस्काउंट का? One discount is trade discount, one discount is cash. Why do you give trade discount? What is the reason? Bulk. बल्क परचेजेस, बल्क से बड़ा क्वांटिटी में तो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। एक मोबाइल खरीदेगा तो कोई ट्रेड डिस्काउंट देगा क्या? नहीं देगा। ओके, सो ट्रेड डिस्काउंट का मेन कारण है बल्क क्वांटिटी है तो ट्रेड डिस्काउंट लेने का। फिर देखने का ताबड़तोड़ पेमेंट आ रहा है कि नहीं। ताबड़तोड़ पेमेंट आ रहा है तो कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। ताबड़तोड़ पेमेंट नहीं आ रहा है तो कैश डिस्काउंट अलाउ। Is this clear? तो कैश डिस्काउंट का लेना देना खाली कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे कैश डिस्काउंट नहीं होता। बट ट्रेड डिस्काउंट से कोई फर्क पड़ता है? क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है कि कैश ट्रांजैक्शन हुआ है कि इमीडिएट पेमेंट है कि नहीं है? डज इट मैटर इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट इज टेकन ऑन बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बोल, what is the doubt? Sir, in some businesses they give discount for buying goods without bill also. So what type of discount? विदाउट बिल जो बोल रहे हो ना तुम, वो व्हाइट का ट्रांजैक्शन नहीं है, ब्लैक है। ब्लैक जो विदाउट बिल होता है ना, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता, उस पर आप टैक्स नहीं भरते, जीएसटी नहीं भरते, वो ब्लैक है। वो सब कमाई आपका घर का पर्सनल, कहीं दिखता ही नहीं है बुक्स ऑफ। तो बगड़ा नो धंधो, अब बगड़ो है रोकड़े का। अब विदाउट बिल कैश में लेते हो आप, चेक भी नहीं लेते, आपने देखा होगा। विदाउट बिल रोकड़े में पेमेंट। रोकड़ा इज ऑल बगड़ा। यू अवॉइड टैक्स, इवेट टैक्स, दैट इज इलीगल, बट पीपल डू दैट। ओके, और बोलो। Should we write this down? ये दिया हुआ है मैंने पॉइंट नंबर 8, सेम चीज। और ये घड़ी घड़ी में बोलने वाला हूं। समझ में आया? कंसेप्ट समझना जरूरी था। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट इज कैश डिस्काउंट? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? मुझे बताओ, ट्रेड डिस्काउंट का कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना है? No. No.
only. It will be calculated for bulk purchase or bulks. What about cash discount? Only for cash. Is only on cash. Only for cash. Okay, keep that in mind. ताबड़तोड़ पेमेंट आया तो ठीक है, बाद में हम लोग ये भी देखेंगे, वो जो मैंने आपको बोला ना 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, वो भी आपको थोड़े बहुत एग्जांपल यहाँ पे डालेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे, वहां पर भी कैश डिस्काउंट आएगा. बट कुछ नहीं दिया तो ताबड़तोड़ ऑन द स्पॉट पेमेंट है. तो अब जर्नल का सम चालू करते हैं. आई डू जस्ट 1 or 2 एंट्रीज एंड देन विल स्टॉप. सी द फर्स्ट वन, सम नंबर 9 we are doing. सम नंबर 9. सम नंबर 9 आर प्रैक्टिस एग्जांपल्स. उसमें कोई बिजनेस का नाम नहीं है. सम नंबर 9 आर ऑल प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है. So we haven't done it, sum, right? Yes, we haven't done it. We will do that. सम सब करेंगे, खाली वैरायटीज के हिसाब से भी. सम नंबर 9. So, example of TD and CD one. हाँ, examples of TDNs. Sum number 9. Trade discount and cash. Sum number 9. Examples of TDs. अभी यहाँ पे आपको डेट्स नहीं दिया है, ये कोई डेट नहीं है, ये एग्जाम्पल्स. तो इधर खाली सीरियल नंबर लिख, जर्नल के ऊपर सीरियल. डेट नहीं दिया है तो सीरियल नंबर लिख. डेट दिया है तो डेट, नहीं दिया है तो सीरियल. See the first one. Right. पुष्टि पूरा मनन आयुषी शिखा 1. Now, see the first one. Purchased goods of 10,000 at 10% TD and 2% CD from विशाल. तो कभी भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के ट्रांजैक्शंस आ जाए, ये खाली प्रैक्टिस के लिए. एक्चुअल सम में 1 या 2 आएंगे आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश. तो कभी भी प्रॉब्लम के बीच में ऐसा ट्रांजैक्शन आ जाए तो आपको पहला चीज खाली ये डिटरमाइन करना है कि इज द ट्रांजैक्शन ऑन कैश बेसिस और ऑन क्रेडिट बेसिस, जिसके लिए आपको 2 कंडीशंस दिया हुआ है, याद है? What are the 2 conditions? Name of the party should be Party's given. name should be given. And nothing should be mentioned for cash, for check, NEFT. Is the name of the party given? Yes. Is anything mentioned about cash or check? No. So is this a cash transaction or a credit transaction? It's a Credit. It's a credit. एक चीज आपको पता चल गई है, आपने गुड्स खरीदा है बट क्रेडिट पे खरीदा, बराबर. अब क्रेडिट पे खरीदा है तो क्या कैश डिस्काउंट आएगा? कैलकुलेट करोगे कि नहीं करोगे? Yes, sir, we can. Because as you said, no, we give if we give the date 2 months after 2 weeks payment. हाँ, वो तो अगर कंडीशन दिया होगा तो अपने को क्या अज्यूम करना है थियरी के लिए? ताबड़तोड़ पेमेंट आया तो कैश, ताबड़तोड़ नहीं आया तो नो कैश. यहाँ पे ताबड़तोड़ आ रहा है पेमेंट, अभी कोई कैश डिस्काउंट देने का नहीं, बराबर है. तो कैश डिस्काउंट इग्नोर करना है. अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट अगर सम में है तो लेने का ही लेने का, उसमें सोचते मत बैठना कि ये बल्क में है कि नहीं, समझा? ट्रेड डिस्काउंट दिखा ना मतलब बल्क में है, अज्यूम इट इज बल्क. तो ट्रेड डिस्काउंट तो लेना ही लेना, ट्रेड डिस्काउंट तो कैलकुलेट करना ही है. तो आपने सोचा था, आप आर यू बाइंग और आर यू सेलिंग? बाइंग. या बाइंग. तो आप गुड्स खरीदने गए दुकानदार से, उस गुड्स का समझो प्राइस होगा 1000 रुपीज पर यूनिट.
आपने बोला मैं 10 यूनिट खरीद रहा हूँ, 10 यूनिट, कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? दुकानदार ने बोला ठीक है 10 खरीद रहे हो ना, तो व्हाट इज द ग्रॉस प्राइस? व्हाट इज द ग्रॉस प्राइस 10 यूनिट का? 10,000. कैन यू सी दैट? 10,000 टीडी दिया, मतलब आप बल्क में ले रहे हो, मतलब 1000 इंटू 10, आप 10 यूनिट खरीद रहे हो. इमेजिन 10 यूनिट खरीदो, 10,000 इज द ग्रॉस प्राइस. दुकानदार आपको कितना डिस्काउंट दे रहा है? हाउ मच डिस्काउंट इज गिविंग यू? 10%. 10%. तो 10,000 रुपीज ये वर्किंग है ना, फिलहाल यू डू इट अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम, बट इन एग्जाम यू हैव टू डू इट इन रफ. ओके, right now you do it here only in the particular column only you do, so that when you revise you will come to know the amount. Okay, so please do the working over here. So 10,000 is the gross price. आपने बल्क में लिया तो वो भाई ने आपको 10% डिस्काउंट दिया. कितना होता है 10% ऑफ 10,000? 1000. तो 1000 रुपया माइनस कर दो. ब्रैकेट्स इन अकाउंट इंडिकेट नेगेटिव. ब्रैकेट्स इन अकाउंट्स इंडिकेट नेगेटिव फिगर. ओके, तो आप माइनस साइन जो लिखते हो ना, ऐसा माइनस, वो माइनस के जगह ब्रैकेट. अब ये हैबिट डाल दे. तो नेगेटिव साइन के लिए ब्रैकेट्स यूज करें. ओके, ब्रैकेट्स मींस नेगेटिव इन बुक कीपिंग. तो माइनस मत लिखो, ऐसा देखो ये माइनस लिखा है ना, ये ब्रैकेट में अमाउंट, ये नेगेटिव. तो 10,000 माइनस 1,000 कितना होता है? 9,000. Will you calculate cash discount? No. Why? No. Because no immediate payment, so no cash discount. Okay? वो जो 10 दिन 12 दिन 15 दिन का है ना, वो कंडीशन दिया होगा सब तो ही लेने, अदरवाइज नो कैश. ओके, कंफर्टेबल? अब बिल कितने अमाउंट का बनेगा? इनवॉइस कितने अमाउंट का बनने वाला? 9,000. वो 10,000 कहीं रिकॉर्ड हुआ था बुक्स में? क्या वो सेलर ने कहीं किया था या हमने कहीं किया था? नहीं. वो तो उसके भी दिमाग में था, हमारे भी दिमाग में था. उसके तो मन में है, वो बोल सकता है 10 में बेचूंगा, 12 में बेचूंगा, 15 में अरे भाई एक्चुअली कितने में बिका? बिल कितने का बना? बिल बना 9,000 रुपए का, बराबर है. तो एंट्री क्या होगी? वी आर बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट. व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री फॉर? परचेज अकाउंट एंड विशाल अकाउंट. परचेज अकाउंट एंड विशाल. और डेबिट क्या होगा? Purchase account. अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट, राइट. और कितना अमाउंट है? 10,000 या 9,000? 9,000. तो सर 10,000 का क्या करने का, 1,000 का क्या करने का? भूल जाने का. कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है. इमेजिनेशन था, इमेजिनेशन. आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. आपने आप समझो कार डीलर यू आर डीलिंग इन कार्स. आपने होंडा सिटी, आप कार के डीलर हो, आपको होंडा सिटी पड़ी है 8 लाख रुपए. ओके, फैक्ट्री से 8 लाख रुपए में आई है. आपको बेचनी है 10 लाख रुपए. आपको बेचनी है 10 लाख रुपए. कस्टमर आया, बार्गेन किया, 9 लाख रुपए में फाइनलाइज. बिल कितने में बनेगा? 9 लाख. 10 लाख के आपने कहीं बिल बना के रखा था कि मैं 10 लाख में बेचूंगा? नहीं. 10 लाख में नहीं बेचा तो नहीं बेचूंगा, ऐसा कुछ बोला था आपने? ये तो आपके दिमाग में था प्राइस. आर यू गेटिंग दैट? इसलिए आपने कभी कभी देखा है एमआरपी पे भी बार्गेनिंग हो सकती है. सुना है ये? वी नेवर बार्गेन विद द शॉप पीपल ऑन एमआरपी, बट एमआरपी पे बार्गेन हो सकता है. ऐसा हो सकता है, समझ में आ रहा है कुछ? एमआरपी का मतलब ये नहीं कि एमआरपी के नीचे बेचेगा तो उसको नुकसान होगा. एमआरपी इज द ग्रॉस प्राइस. एमआरपी इज द ग्रॉस प्राइस. तो ऐसा मैकेनिज्म कैसे चलता है? देखो, एक मोबाइल फोन है, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है. तो मोबाइल फोन पे एमआरपी लिखा होता है 16,000. जो आप देखते हो स्टोर में, रियलमी का फोन, रेडमी का फोन, एमआरपी लिखा होता है 16,000. ठीक है. फैक्ट्री में से बन के डिस्ट्रीब्यूटर, जो होलसेलर होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हो, फैक्ट्री से होलसेलर को जाता है, होलसेलर से रिटेलर को जाता है, और रिटेलर से कस्टमर को जाता है. ठीक है.
तो फैक्ट्री जो है एमआरपी लिखा होगा कितना 16,000, लेकिन फैक्ट्री जो है होलसेलर को कितने में बेचेगा आपको मालूम है? ये 8 या 9,000 में बेचेगा। फैक्ट्री से होलसेलर को जाएगा 9,000 रुपए। कितने में? 9,000 में। तो इसमें आपको समझ में आया कितना ट्रेड डिस्काउंट था? 7,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट है। 16,000 का मोबाइल फोन है ग्रॉस प्राइस, और कितने में पड़ा इसको? 9,000। तो इसका बिल बनेगा 9,000। ये 9,000 दे देगा फैक्ट्री, अभी नहीं, क्रेडिट पे खरीद के बाद में। फिर ये जो 9,000 वाला माल है ये रिटेलर को कितने में बेचेगा? 11,000 में बेचेगा लेटेस्ट। ये रिटेलर को कितने में बेचेगा? 11,000 में बेचेगा। तो बीच में 2,000 रुपया क्या हुआ इसका? प्रॉफिट। लेकिन रिटेलर को भी ट्रेड डिस्काउंट मिला है। आर यू एबल टू सी दैट? रिटेलर को भी ट्रेड डिस्काउंट मिला है। रिटेलर के लिए भी ग्रॉस प्राइस क्या है? 16,000 है, लेकिन इसको पड़ा कितने में? 11,000 में पड़ा। ओके, और ये 11,000 का माल आपको कितने में बेचेगा? 16 में। एमआरपी आपको बताएगा, एमआरपी आप बोलोगे एमआरपी देना चाहिए, लेकिन आप मालूम है दुकान में बार्गेन कर सकते हो, करते भी हैं लोग। तो 16,000 का मोबाइल फोन आपको कभी कभी कम करके, कभी आपका रिश्तेदार होगा तो आपको कम करके 15 का 16 का मोबाइल फोन आपको 14,000 में दे देगा, कभी 15,000 में दे देगा। वो क्यों दे पा रहा है? He is not making any loss. He is getting that mobile phone for what price? 11,000 rupees. Are you understanding this? And he is selling it to you even after discount. He is selling it to you for 14,000. आपको भी ट्रेड डिस्काउंट मिला, चलो बल्क परचेज या वॉट एवर यू कॉल इट, 2 मोबाइल फोन 3 मोबाइल फोन, रिश्तेदारी की वजह से जो भी मिला, आपको भी मिला ना डिस्काउंट 2,000 रुपये, फिर भी उसका फायदा है, फिर भी उसका फायदा। यू गेटिंग दैट? 3,000 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है। तो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स। दिस इज हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स। इधर बिल कितने का बना है? होलसेलर का बिल बना है 9,000 का, रिटेलर का यहाँ पे बना है परचेज बिल 11,000 का, और सेल का बिल कितने का बनेगा? 14,000। समझ में आया? तो बुक में ट्रांजैक्शन में क्या प्राइस रिकॉर्ड होगा? इसका 9, इसका 11 और इसका 14। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फैक्ट्री ने सेल किया 9 में, इसने परचेज किया 9 में, इसने सेल किया 11 में, इसने परचेज किया 11 में, इसने सेल किया 14 में, इसने परचेज किया 14। तो बुक में रिकॉर्ड होगा ये प्राइस 9, 11 एंड 14। वो 16,000 कहीं पर रिकॉर्ड हुआ? क्या था? इमेजिनरी। इट वाज एन इमेजिनरी प्राइस, जो प्रॉफिट वॉफिट लगा के सोचा था कि इतने में सेल करें। इज दिस क्लियर? So you can always bargain on MRP. Always remember. और जितना बड़ा बड़ा लग्जरी गुड्स होता है ना, जैसे कि परफ्यूम्स होता है, have you seen perfumes in malls? 4,000 rupees a bottle, 5,000 rupees a bottle, वो MRP होता है। But the same perfume का wholesale price are very less. They are around 2,500 rupees, 2,700 rupees. और आपको मॉल्स में मिलेगा 4-5 हजार, क्योंकि उसको मॉल का भी खर्चा निकालना है ना, एयर कंडीशनर, दुकान का भाड़ा, इतना सारा स्टाफ रखा है, उसका पगार, वो सब आपको चिपका के देता है। तो होलसेलर और रिटेलर में बहुत प्राइस का फर्क है। तो आप बार्गेन करोगे तो आपको डिस्काउंट में भी देगा, फिर भी उसका लॉस नहीं होना। इज दिस क्लियर? सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स। सो हियर वी बॉट द गुड्स एट व्हाट प्राइस? 10 का 9,000. तो अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड होने वाला है? बिल प्राइस। व्हाट इज द बिल प्राइस? 9. Got it? And it's on cash or on credit? Credit. Purchase to Vishal 9,000 being goods purchased from Vishal at, ये डिस्काउंट का रेट खाली नरेशन में मेंशन कर दे, at 10% TD, 10% TD या TD 10, ये खाली रेफरेंस के लिए। 10% TD is just for your reference. Okay? मतलब नरेशन में लिख देने का, आपको पता चले कि इस पे कितना डिस्काउंट। एंट्री में कभी डिस्काउंट रिकॉर्ड होने वाला नहीं। इज दैट क्लियर? So that was a simple example of trade discount. We stop at this point, और next lecture will continue. अच्छा, संडे टेस्ट है, आपका टाइमिंग्स पैटर्न आई सेंड यू। SVDD स्कूल में होगा, ऑफलाइन होगा,
1 hour 15 minutes to 1 hour 30 minutes. Okay, portion is clear. Journal nahi hai, portion. Definitions. Double entry system. Double entry system, tables, analysis table. Okay. Which doubts hai to ruko, otherwise we'll continue on. The 160. Hi, sir. Thank you, sir. Sorry. The list of 160 items which you have given, Yes. that you will ask that. Yes. Yes, that is classification. Traditional, modern, dono hai.